दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया के थर्ड चैप्टर में हैं और हम लोगों ने कल पंजाब के डिवीजन के इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बंगाल की तरफ देखेंगे कि रेडक्लिफ ने किस तरीके से वहां पर डिवाइड किया था और उसका बहुत पड़ा था। दादा नमस्कार, सुनाई दे रहा है? जयवर्ती साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम बीबी दादा, प्रणाम बेम दादा। नमस्कार नमस्कार सर, प्रणाम। आवाज कम आ रही है दादा की, आज खाना नहीं खाया लगता है। चाय नहीं पी, बस चाय पीऊंगा ना फिर जान आ जाएगी। नहीं इनको बोल रहा हूँ, मजूमदार को बोल रहा हूँ। हाँ अब ठीक आ रही है सर? अब ठीक आ रही है सर? अब ठीक आ रही है। हाँ अब ठीक तो है। हम लोग शुरू करते हैं। रेडक्लिफ लाइन के बंगाल की तरफ को घुसते हैं। सर आवाज आ रही है सर? वहां देखते हैं क्या आ रही हो है? रहा है। हाँ आ रही है। मेरी आ रही है ना आवाज? हाँ जी, बिल्कुल साफ एकदम। लाउड एंड क्लियर सर। तो दादा शुरू किया जाए बंगाल चटगांव। जी सर। जी सर। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। चिटागोंग हिल 97% Buddhist. जी सर. Had a majority non-Muslim population of 97%, most of them Buddhists, but was given to Pakistan. The Chittagong Hill Tracts People's Association petitioned the Bengal Boundary Commission that since the CHTs were inhabited largely by non-Muslims, they should remain within India. The Chittagong Hill Tracts was an excluded area since 1900 and was not part of Bengal. It had no representative at all at the Bengal Legislative Assembly in Calcutta, since it was not part of Bengal. Since they had no official representation, there was no official discussion on the matter, and many on the Indian side assumed that the CHT would be awarded to India. On 15th August 1947, Chakma and other indigenous Buddhists celebrated Independence Day by hoisting the Indian flag in Rangamati, the capital of Chittagong Hill Tracts. When the boundaries of Pakistan and India were announced by radio on 17th August 1947, they were shocked to know that the Chittagong Hill Tracts had been awarded to Pakistan. The Baloch regiment of the Pakistan Army entered Chittagong Hill Tracts a week later and lowered the Indian flag at gunpoint. The rationale of giving the Chittagong Hill Tracts to Pakistan was that they were inaccessible to India and to provide a substantial rural buffer to support Chittagong, now Bangladesh, a major city and a port. Advocates for Pakistan forcefully argued to the Bengal Boundary Commission that the only approach was through Chittagong. The indigenous people sent a delegation led by Sneha Kumar Chakma to Delhi to seek help from the Indian leadership. Sneha Kumar Chakma contacted Patel by phone. Sardar Patel was willing to help, but insisted Sneha Kumar Chakma seek assistance from Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister. But Nehru refused to help, fearing that military conflict. Yes, sir. But Nehru refused to help, fearing that military conflict for Chittagong Hill Tracts might draw the British back to India. Malda district. Another disputed decision made by Radcliffe was the division of the Malda district of Bengal. The district overall had a slight Muslim majority, but was divided, and most of it, including Malda town, went to India. The district remained under East Pakistan administration for 3 to 4 days after 15th August 1947. It was only when the award was made public that the Pakistani flag was replaced by the Indian flag in Malda. Khulna and Murshidabad district. मजूमदार साहब क्या हुआ जी है? सर। हाँ खुलना। हाँ, किसी को पता ही नहीं था कुछ. Khulna and Murshidabad districts. The Khulna district
with a marginal Hindu majority of 51%, was given to East Pakistan in lieu of the Murshidabad district with a 70% Muslim majority, which went to India. However, the Pakistani flag remained hoisted in Murshidabad for 3 days until it was replaced by the Indian flag on the afternoon of 17th August 1947. Karimganj, Sylhet district of Assam joined Pakistan in accordance with the referendum. However, the Karimganj subdivision with a Muslim majority was severed from Sylhet and given to India, which became a district in 1983. As of the 2001 Indian census, Karimganj district now has a Muslim majority of 52.3%. Legacy. The partition of India is one of the central events in the collective memory in India, Pakistan, and Bangladesh. As a crucial determiner in the outcomes of the partition, the Radcliffe Line and Award process has been referred to in many films, books, and other artistic depictions of the partition of India. छोड़ Apart from देते the largest, रहने देते छोड़ दो, हो गया। जी, बाकी तो सब ये ऐसे ही है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, आर्टिस्टिक डिपिक्शन, ये तो ये पिक्चरें जरूरी बनाई है, होगी, सर। डॉक्यूमेंट्री बनाई होगी, ये सब की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आर्टिस्टिक मतलब क्या है? लाइन ड्रॉ कर दिया गया बस। नहीं Without आर्टिस्टिक thinking इन about द it. सेंस कि रेडिकल लाइन के ऊपर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, कुछ और बनाए जी, होंगे जी, ना, जी। एपिसोड बनाए अच्छा, होंगे अच्छा, उसके। अच्छा, अच्छा। अच्छा जी, सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड, सर। हाँ, तो वो ऐसे ही है वो। बाजवा साहब अंदर आ जाओ, क्या हाईलाइट करूं लिंक? बाजवा साहब बार-बार घूम रहे हैं। या अभी ये टाइम नहीं होगा उनको शायद। एनीवे, मैं ये नेशनल ज्योग्राफी का एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कि जी, सर। हमारे लोगों ने कुछ किया है, सब जिन्होंने खुद देखा है और सहा है। ये है Why the partition of India and Pakistan still casts region. The end of British colonial rule birthed two sovereign nations, but hastily drawn border caused simmering tensions to boil over. 75 years later, memories of partition. People स्टिल है, exercise in a स्टिल हॉन्ट सर्वाइवल। हाँ, हाँ, जैसे उस दिन partition पिताजी आए थे ना, still वैसे ही। जी haunts survival. People exercise. अच्छा, नीचे से पढ़ता हूँ मैं. On the night of August 13, 1947, a 13-year-old Suri Sehgal was so excited he couldn't sleep. The next day, he'd watch the lowering of the British flag and the raising of a new one in his native Punjab province. Once part of India, this town would now become part of a new nation called Pakistan. The newly demarcated country of India would become a self-governing state a day later. Sehgal remembers the Lala Musa train station where the Pakistani flag ceremony took place, the optimistic mood, and the special meal he shared with his family and friends. We all celebrated together, he recalled in a 2016 oral history with the 1947 partition archive. It was wonderful. बाप रे, ये जय भारती साहब। हालत देखी। हाँ, ये तो अब ये पिक्चर्स तो जब तक जिंदा रहेंगे, दिमाग चलेगा, ये तो पिक्चर्स जाएंगी नहीं जितनी भी देखी हैं इतने सालों से। Within hours, the long-awaited transition of power and the partition of India into two nations, majority Hindu India and majority Muslim Pakistan, had become a nightmare as simmering secular tensions stoked by divisive colonial rule boiled over. That evening, Sehgal watched in horror as hundreds of people carrying knives and other weapons ran past, on the hunt for Hindus to attack. Days later, Sehgal's father, worried about the safety of his half-Hindu children, pushed them into a sweltering packed moving train at the same station where they had celebrated Pakistani independence. As the refugee train made its slow way southward into India, its exhausted occupants were confronted with piles of dead bodies being eaten by vultures alongside the tracks. उफ उफ, बाप रे। Sehgal was one of millions of Indians and Pakistanis whose lives were disrupted or ended during what is known as partition. On its surface,
The August 1947 creation of two self-governing nations was a victory for those who longed for self-determination. It would be another several decades, however, before people who lived in what is now Bangladesh would gain that right. But simmering secular tensions and a severely mismanaged transition turned Britain's historic exit from the सर Just थोड़ा a सा minute, just a minute. नो प्रॉब्लम हाँ Bangladesh, but simmering secular tensions and a severely mismanaged transition turns Britain's historic exit from the colony into a bloodbath. How the British split India. With the end of British colonial rule in 1947, the Indian subcontinent was divided into two nations, majority Hindu India and majority Muslim Pakistan. The hastily planned transition led to one of the largest refugee crises in history. Colonial rule. Before partition, Hindus accounted for nearly 70% of British India's population, while Muslims made only a quarter. Although most Muslim majority communities were in the north, religious groups were dispersed throughout the country. After partition, dividing the country by religion proved difficult, especially in the provinces of Punjab and Bengal, which had near equal Hindu and Muslim populations. The resulting creation of a non-contiguous Pakistan forced millions of Hindus and Muslims to relocate. Area of contention. In the north, the Radcliffe Line stopped at Jammu and Kashmir, a princely state that chose to remain independent after partition. The border is still contested. The colonial roots of partition. Partition's roots date back to the 17th century, when the British East India Company, a private company that traded in Indian riches like spices and silk, began acquiring Indian land, taking over local governments, and making laws that flew in the face of long-standing cultural traditions. How the British East India Company became the world's most powerful business. In 1857, Indian soldiers mutinied, prompting the British government to dissolve the company and take over India. The newly established British Raj appointed officials, many of whom had never set foot in India before, to keep its colony in line. Those privileged British administrators and their families lived in wealth and luxury, while most Indians lived in poverty. As Britain drained India of its wealth and profited from its natural resources, it subdivided 60% of the nation into provinces and recognized a patchwork of hundreds of pre-existing princely states, autonomous entities overseen by local rulers. To preserve its dominance, the British Raj deliberately emphasized differences between religious and ethnic communities. As geographer A. J. Christopher explains, colonial administrators used traits like religion and skin color to segregate and isolate their subjects. They eventually established a limited political role for Indians, but the progress for getting those positions often pitted Hindus and Muslims against one another. Lord Curzon, the British viceroy to India, further fueled these divisions in 1905 when he split India's largest province, Bengal, into two, one majority Muslim, the other majority Hindu. A staunch colonialist who believed that Indians were inferior, Curzon faced sharp resistance in this attempt to divide and rule. But though the split only lasted till 1911, it galvanized a growing independence movement within the Indian National Congress, a political party that had been formed by educated elites to negotiate with the British Raj. It also spurred the formation of the Muslim League, a political party agitating for Muslim rights within India. Lord Curzon on the elephant, हाँ हाँ elephant huh? जी जी Wife. in royal splendor.
The fight for an independent India. In the early 20th century, Etonian politician Mohandas Mahatma Gandhi was elected to the Indian National Congress. दादा एक मिनट, And they, we जी, are referring to National Geographic news. We are not जी. referring to any BJP propaganda newspaper or something like that. Viewer, please note. Correct, sir. Absolutely, sir. In the early 20th century, Etonian politician Mohandas Mahatma Gandhi was elected to the Indian National Congress and began pushing for independence from Britain through non-violent civil disobedience. But boycotts, demonstrations, and marches met with brutality and legal crackdowns. ये ब्रैकेट वाला मत पढ़ो, ब्रैकेट वाला मत पढ़ो. Yes, sir. British officials attempted to appease the nationalists, enfranchising more people and increasing the representation in local government. These reforms only benefited a small group of Indians. By 1935, only 12% of citizens could vote. Viewers, please note, only 12% of citizens could vote by 1935. Then the United Kingdom entered the Second World War and took India with it. Forced to defend the colonizers' interests with their own blood, many Indians opposed the war. To shore up support, the British government offered India status as a British-owned dominion that could govern itself with British oversight. But the Indian National Congress rejected the plan. In 1942, Gandhi launched Quit India, a campaign of widespread civil disobedience demanding immediate independence. Britain responded by arresting Gandhi and other leaders and outlawing the Indian National Congress. कलकत्ता, हाँ, कलकत्ता का फोटो है सर, ये बांग्ला में लिखा हुआ है. 1946. 4,000 people were killed, ये बोल रहा है. हाँ जी. And 10,000 were injured. The move backfired. The crackdown galvanized many who had not supported independence in the past. Widespread riots and mass detentions followed. Quit India had been suppressed, but it and the mistrust sown during a catastrophic famine in Bengal that killed millions in 1943 convinced British leaders that India's future as an obedient colony was doomed. Though independence began to appear within India's grasp, divisions between the Indian National Congress and the Muslim League deepened. Gandhi and Jawaharlal Nehru, another National Congress leader, had long believed an independent India should be a single, unified nation. But though the Muslim League also supported home rule, its leader, Muhammad Ali Jinnah, publicly abandoned the cause of a unified India in 1940. Though the Indian National Congress billed itself as a party for all Indians, members of the Muslim League were concerned it only represented Hindu interests. A united India, Jinnah argued, would give Hindus control of the Muslim minority. Instead, the party demanded autonomy through the creation of a nation called Pakistan. डायरेक्ट एक्शन डे. ये लंदन का फोटो है सर. Matters became even more fraught when in 1946 talks between the two groups fell apart and Jinnah called for Direct Action Day of Muslim protest. We will either have a divided India or a destroyed India, he said. The call resulted in catastrophe. What he said. यहाँ पर सैयद चाचा को देखना चाहिए कि क्या है ये. Whether he was Sunni or what Khoja or whatever it is, but he said that we will either have a divided India or destroyed India. The call resulted in catastrophe. On August 16, 1946, Muslim Hindu riots erupted in Calcutta, the capital of Bengal province. The air was electric,
wrote a military official in a report. The result of this riot has been complete mistrust between the communities. An estimated 4,000 were killed and 10,000 injured in the conflict, and 1 lakh were left homeless. अब ये गया बुड्ढा वहां पर शांति करवाने के लिए, नवखाली में कहाँ गया था ये हीरो? मैं तो वहां चुप बैठा था ना, मौन व्रत पे था। पुराना किला न्यू। ओके, 1947. As India tittered on the brink of civil war, Britain's interest in maintaining its waning control evaporated. Facing international pressure to withdraw, George VI sent his cousin Lord Louis Mountbatten to India in March 1947 to manage Britain's retreat. Mountbatten convinced leaders to agree to the creation of two new states. He is the person who convinced the leaders to agree to the creation of two new states, Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. But though he was given a year to complete his task, he rushed the schedule, giving Cyril Radcliffe, a British lawyer who had never set foot in India, just 5 weeks to divide the country into two and demarcate the new nation's borders. Princely states could decide which nation they wanted to join, and Radcliffe and his team were otherwise told to draw boundaries that respected religious majorities and prioritized contiguous borders. The Radcliffe line was easy to draw in areas with a distinct majority, but Radcliffe soon found that the religious groups were dispersed throughout India, in areas like Bengal and Punjab, which had near equal Hindu and Muslim populations. Drawing a line proved particularly difficult. In the end, Radcliffe and his team, none of whom had expertise in map-making or Indian politics and culture, split both provinces in two and awarded roughly half to each new nation. This meant the new country of Pakistan would not be a contiguous nation. Most of its landmass lay in the northwestern corner of India, with a chunk called East Pakistan that lay in Bengal in the west. The decision was fateful. It stranded hundreds of thousands of Hindus and Muslims in the wrong new nation and separated Bengal from the rest of Pakistan by 1,000 miles. On August 14th and 15th, 1947, Pakistan and India became dominions of the British Crown, with the understanding that they would ultimately become fully independent. But Mountbatten refused to issue the maps until 2 days later in an attempt to keep the international focus on Britain's benevolence. Benevolence. My foot, benevolence. Correct, sir. Absolutely. Yuvaga border. What Britain cast as a triumph was actually the beginning of the largest human migration in history and one of humanity's most brutal episodes. Uncertain about where the borders had been drawn and which country they currently lived in, as many as 18 million people packed up their belongings and set out to reach the right country. The ensuing confusion and fear was like tinder for long-standing Hindu-Muslim tensions. After years of increasingly polarized rhetoric, old grudges became deadly, and new animosity broke out amongst those who, whose minority and majority statuses had suddenly switched. Assailants abducted and raped thousands of women. People butchered members of their own families. Mobs attacked refugees and villagers, set buildings on fire, looted बदल homes ये and क्यों है? businesses. People butchered members of their own families. ये लेडीज जो है ना, वो ताकि उनको मुस्लिम मार लोगों के दिया था हाथ, ना। हाँ जी, बच्चे मुस्लिम, ये लेडीज. Mobs attacked refugees and villagers, set buildings on fire, looted homes and businesses, and committed mass murder. The violence was especially dire in Punjab and Bengal. In Punjab, ex-soldiers who had fought in World War II used their weapons on behalf of local elites who, writes historian Maithili Srinivas, used the chaos of partition to settle old scores.
assert claims over land, and secure their own political and economic power. Though the countries were technically its dominions, Britain did not quell the violence. इसको बढ़ने दिया और By the time the violence faded around 1950s, between 1 and 2 million people had died, and both nations were forever transformed. In 1948, Gandhi was assassinated by a Hindu nationalist who reportedly thought the leader was too pro-Muslim. Meanwhile, Pakistan's unusual geography had seeded tensions between East and West that would ultimately lead to a push for Bangladeshi independence. Home to 56% of Pakistan's population, East Pakistan received less funding and had less political power इसको than पढ़ना its जरूरी Western नहीं है, counterpart. जाने देते हैं ना, हाँ, ये बांग्लादेश का तो अलग इशू है. बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा है वो. जय भारती साहब, और देखोगे? अरे म्यूट हो. हाँ, एक सवाल इसको देख के दिमाग में आता है. जब पाकिस्तान की क्रिएशन की बात चल रही थी, क्या बंगालीज ने भी कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, हमारे लिए अलग, जैसे सिखों का कहा कि भाई इफ वी हैव अ सेपरेट कि भाई कुछ ऐसे था कोई डिस्कशन? वो सोहरावर्दी था ना बेवकूफ, जो यहाँ का बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर बना के रखा था. सर वो सूफी था एक्चुअली. ये सूफी रूट्स. अब वो लोग बोलते हैं ना सूफी लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका धर्म कुछ अलग है, दे आर मोर मिस्टिक, दे आर मोर स्पिरिचुअल. दैट इज ऑल नॉनसेंस. ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सूफीज्म, और एक नंबर का बदमाश वही था. एकदम करेक्ट बोला है सर. और वो एक दूसरा नहीं था, वो क्या नाम है उसका, मंडल का क्या नाम था, विच मंडल? जोगेंद्र नाथ मंडल, जो अपने आप को अंबेडकर का बाप समझता था उस समय, और पाकिस्तान का. हाँ, उस समय का भीम आर्मी वाला ही था ना, उस समय का था. जय भीम जो आज से चलता है ना, वो उस समय से यही कर रहा था. वो लात खाकर वापस आ गया ना. मर गया. जिन्ना उसको बहुत पसंद करता. जिन्ना वांटेड टू डिवाइड, लाइक ही वांटेड टू रूल ऑल ओवर इंडिया. इसी चक्कर में उसने जोगिंदर मंडल को लिया था कि यहाँ का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो भी उसके साथ में जुड़ जाएगा शायद. That would have been his long plan. क्या बहुत ट्रेजेडी थी भाई. कुछ फोटो देखते हैं सब. जय भारती साहब, दिल थाम के बैठो. ये बंदा देखिए, ये तो काफी पिक्चर्स देखी हुई है. ये तो आपने जनरेशन दिखा देते हैं ना साहब. हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ दिखाइए. ये बुड्ढा, ये भी हमने देखी है उसमें ज्योग्राफी में. लंदन वाली पिक्चर. Demonstration in London calling for the creation of Pakistan in 1946. Below, the police in Calcutta using tear gas to break up mob. Hindu-Muslim communal riot lasted 5 days with more than 2,000 people killed. And अब ये बकवास कर रहा है यहाँ पर. न्यूयॉर्क टाइम है ना. अमृतसर का देखिए क्या हाल है. बिल्डिंग्स का देखिए, पूरा एकदम मकान तोड़ दिया एकदम. और दादा एक और बात आपका ध्यान, इसको अभी फोटो को ये रखिए. कल मैं न्यूज़ देख रहा था, इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी, ठीक है, इलेक्शंस जो होने वाली है अभी वहाँ की, उनका एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 7 लोगों को उनको टिकट ही नहीं दी, निकाल दिया. उसमें तो 6 हिंदू हैं और 1 क्रिश्चियन है. अब गेस व्हाट, किसकी वजह से ये चल रहा है इंग्लैंड में? पाकिस्तानियों की वजह से ही होगा. दे विल पे डियरली आने वाले टाइम में. ये हिंदू लेबर पार्टी के साथ मिलते क्यों हैं, जाते क्यों हैं वहाँ? मैंने भी ये सोचा था ना. बिल्कुल.
क्यों जाते हैं? आपने आपने ये सवाल तो हिंदुस्तानियों के ऊपर उठाया था कि कांग्रेस के साथ भी जाते क्यों हैं? सेम थिंग यहाँ पर भी है, ये लोग लेबर पार्टी के साथ जाते क्यों हैं? अच्छा हुआ। मेरा एक व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, हैड चर्चिल बीन द प्राइम मिनिस्टर तो शायद इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट नहीं होता था। ये छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। क्लेमेंट अटली आया ना, उसने गड़बड़ कर दिया उसको। थोड़ा सॉफ्ट आदमी था, क्योंकि उसका तो चर्चिल से गांधी का तो 36 का आंकड़ा था ना, वो उसको हाँ, पसंद नहीं। इसीलिए एंड लेबर पार्टी एकदम सही। वांटेड गांधी टू बिकम गॉड इन इंडिया, इसके लिए कर दिया उसको। और मुझे तो अभी भी लगता है कि इनको मालूम था, ब्रिटेन वालों को मालूम था कि गांधी इज गोइंग टू बी मर्डर्ड, इसलिए उन्होंने जल्दी से अगस्त में छोड़ दिया। बोला हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए बस। नहीं, ये बात सही है सर। तो कल मैं बताया ना, देयर वर 2 अटेम्प्ट्स अर्लियर आल्सो टू किल हिम, तो उनको तो पता ही था, दे हैड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अबाउट दैट। जयभारती साहब देखो, नीचे वाला पिक्चर बहुत ग्राफिक है। 2 children upright with a nurse in March. They were rescued by British soldier after their mother was stabbed to death. मम्मी मर गई। अरे दादा, अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ 3000 लोग मर गए और इन्होंने 2 कंट्रीज की ईंट से ईंट बजा दी। जयभारती साहब ये कहाँ का है? दिल्ली में कहाँ का है ये सीन? दरियागंज? दादा हो सकता है पुरानी दिल्ली है, डोमिनेटेड बाय सर सारा उर्दू में मुस्लिम एरिया। देखिए, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ पा रहे हैं मेरे सर उर्दू में? मैंने तो अपने चाचा जी को मैसेज किया, मैं कहा ज्वाइन इफ यू कैन, वो तो अभी भी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ये बॉडी सड़ गया सर, सड़ रहा है। देखो ना, सब लोगों ने मुंह में बांध रखा है ना। हाँ, पेट फूल गया देखिए यहाँ। दादा ठीक कह रहे हो मजुमदार दादा, ये ना पुरानी दिल्ली कह रही है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये जो हाँ ये जो आर्किटेक्चर है ना दुकानों का, ये जी, ट्रक जी, के जी, नीचे जी, जो, हाँ क्योंकि हम भी जब आए तो मेरी भी बर्थ पुरानी दिल्ली की है ना, तो वो जिस जी, जी, मकान जी। में रहते थे उसको कहते थे, वो जगह है नवाबगंज, जिसके 5-6 कॉलोनी के गेट बंद कर दो, सारी कॉलोनी बंद हो गई। तंग गलियां हैं, कुएं जैसे मकान है। चाचा जी ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि कब आए थे वहां पर, कब अलॉट हुआ था। तो इस तरह का आर्किटेक्चर है उस एरिया में, तो ये वही होगा पुरानी दिल्ली की तरफ का। ये दिल्ली गाड़ी, ये मजुमदार, ये गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर बॉडी रख रहे हैं, जिसमें उर्दू में लिखा हुआ जी, है। जी, 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 जी। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लोकेलिटी है ना, ये आई थिंक दरियागंज का जो इलाका है ना, वहाँ का है, कुछ ऐसा लगता है। आर्किटेक्चर वही पुराना स्टाइल का है। देखिए ये बिल्डिंग्स जो है आर्चेस ऊपर बना हुआ है। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? लॉर्ड माउंटबेटन in a photo from the Indian military saluting the Indian flag hoisted at India Gate with his wife Edwina and her boyfriend Nehru. Her boyfriend, by जी, जी। her boyfriend. ये क्या है? A throng of people gathered in New Delhi to celebrate the end of British rule. उनको थोड़ी पता था कि क्या होगा बाद में, 2 दिन बाद क्या होगा, बेचारे लोग। Jinnah addresses Constituent Assembly with Lord Mountbatten in attendance in August 1947. देखिए सर, उनका चेहरा देखिए, लग रहा था कि पूरा एकदम लास्ट स्टेजेस में है। देखिए पूरा गाल वाल घुस गया है, हड्डी निकल गया पूरा, टीबी इतना फैल गया था कि बचना नामुमकिन नहीं था। मजूमदार, मैं लीगल उसमें पूछ रहा हूँ कि इसका तो मेडिकल मतलब इलाज तो चल ही रहा होगा, इसका तो पूरा मेडिकल का रिकॉर्ड जो है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो दिस वाज डेलिबरेट अटेम्प्ट कि ठीक है, डिवाइड कर दो भाई, तू अपना भी ले ले, मर तो जाएगा ही तू। हाँ, मरने के पहले भाई करवा दें। तो इसका ट्रीटमेंट भी कोई ब्रिटिश डॉक्टर ही कर रहा होगा टू मेंटेन द बिल्कुल, सीक्रेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, हाँ ठीक है। अरे उसका सूट वगैरह कहाँ से, मतलब वो ये वॉशिंग के लिए भेजते थे लंदन ना? हाँ, पानी की लाइन लगी हुई है जी, जी। दिल्ली में।
Sikh migrating on their way from Pakistan to their new homeland in October 1947. यही मैंने आज अपना ऊपर बैनर बनाया है इसी को. जी जी जी. हम्म. People crowding onto trains. बाप रे, देखिए नीचे. नहीं पढ़ो क्या लिखा है. People crowding onto trains as the partition of British India triggered one of the largest migrations in history. Muslims fled from India to Pakistan and Hindus and Sikhs went in the opposite direction. एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन उधर जा रही है. हाँ, तो the amount of people who have collected, the trains are beyond carrying people beyond the capacity. A convoy of Muslims passes by the remains of an earlier caravan, both human and cattle. डॉग भी बैठा है वहां पर. बताओ, यहाँ पर एक चारपाई भी रखी है. ये चारपाई. देखिए, ह्यूमन रिमेन्स. अरे स्केलेटन्स, आर्म्स. गिद्ध वगैरह घूम रहे होंगे ना. A married couple who had been separated for 10 months were reunited in the women's camp in Lahore, Pakistan in 1948. देखिए, पंजाबी लड़का है सर. लग तो रहा है कि पंजाबी लड़का है. A refugee camp in Kurukshetra in Indian Punjab, where 3 lakh people sought shelter in late 1947. ये देखिए टेंट्स. ये इसी का हम लोग बोल रहे थे ना. जम्मू कश्मीर का जो पंडित बाकी दिल्ली में आए थे, उन्होंने भी ऐसे टेंट बनाए थे. ये 1947. जी जी जी. ये क्या peculiar देखिए स्लोगन है. गांधी ऑब्जर्विंग द आफ्टरमाथ ऑफ पार्टीशन राइट्स इन इंडिया. मैं सेलिब्रेट कर रहा था. ऑब्जर्विंग द आफ्टरमाथ. ये क्या बोलना चाहिए? Implication is celebration of Indian troops positioned in Srinagar in November 1947. They all are Sikhs. Reading the news in London of Gandhi's assassination by Hindu extremist, बोल रहा है. हिंदू एक्सट्रीमिस्ट. हाँ, पेपर पढ़ रहा है सब लोग. Muslim women praying on the slopes of Hari Parbat, a hill in Srinagar, which is known as Ko-i-Maran and has Hindu and Sikh shrines nearby in 1948. बैलेंसिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स बैलेंसिंग कर रहे हैं. एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूं दादा. कंट्रोवर्शियल? हाँ, कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रहे हो? बोल दो ना सीधा का सीधा. कंट्रोवर्शियल मत बोलो, एडजेक्टिव मत लगाओ, सीधा बोल दो. एक बात बोलो. नहीं कंट्रोवर्शियल मत बोलो. अपने आप से जजमेंट मत दो. नहीं, वो आप लेफ्ट ऑन समबडी एल्स. आप मत नहीं, वो आपको समझ आएगी मैं क्यों मैंने डेलिबरेटली कंट्रोवर्शियल बात बोली है. आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इस बात को मैं अपने, अब क्योंकि देखो मेरे चाचा जी और मेरी मासी भी सुन रही होगी, क्योंकि मैंने लिंक दे दी दोनों को, अपनी मासी को भी. आप ठीक है. उससे पहले उन्होंने भी सुबह मैसेज भेजा कि जो मेरे चाचा जी आए थे वो वाली स्ट्रीम देखी एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है ना. अभी सुन रही होंगी. और हमारे पेरेंट्स को मैं थोड़ी गलती दूंगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को. उन्होंने हमको प्रोटेक्ट शील्ड किया, लेकिन इसके बारे में घर में बातें नहीं. इसलिए मैं कह रही हूँ कंट्रोवर्शियल है. आई एम ब्लेमिंग हमारी भी जो पहली जनरेशन थी, हमने यहूदियों से कुछ नहीं सीखा. कितनी चीजें. उस दिन चाचा जी आए थे, वो हड्डी फेंकने वाला जो इंसिडेंट था, वो मेरे को 3 दिन पहले पता चला. मुझे पता नहीं. हमारे घर में मेरे व्हाई माय फादर डिडंट से, व्हाई माय ग्रैंडमदर डिडंट से, व्हाई माय ग्रैंडफादर डिडंट से, हमें पता ही नहीं. After all the trauma they went through, they should at least कि भाई देखो ऐसा होता है, ऐसा हुआ. ठीक है, they were protecting us कि पढ़ लो, सब ठीक है, लेकिन कुछ तो पता चले. पता है नहीं.
इसलिए मैं कह रहा था दादा इसे कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मेरे रिलेटिव सुन रहे होंगे, राइट? तो अब मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम माय फादर, माय चाचा, एवरीथिंग, बट दे शुड हैव थॉट आज हम जिस पोजीशन पे हैं, हिस्ट्री से नहीं सीख रहे, लगता है अगले 20-25 साल में हम हिस्ट्री को रिपीट कर देंगे। अगर बंगाल में कुछ हुआ, क्या करोगे? वो होने का चांसेस बहुत है सर। चांसेस बहुत ज्यादा है। केरला में क्या करेंगे? कश्मीर हो गया ना, ये तो इतनी रिसेंट, ये तो देखा हुआ है, मैं 25-26 साल का था, कश्मीर हुआ, मेरे सामने हुआ। क्या किया हमने? कुछ नहीं, तभी इतना नहीं पता था। सिंह साहब, मैं बोरिया बिस्तर लेकर आपके यहाँ आ रहा हूँ सर, आपके यहाँ पहुंचूंगा बोरिया बिस्तर लेकर सब। आज ज्यादा दिन हम दादा, लोग टिक नहीं पाएंगे। हाँ, सिंह साहब, आप भी अपना ग्रीन कार्ड करवा लो, हैव अ बैकअप प्लान। ये क्या कह रहा है भाई? नहीं ये फंसा देगा फिर। नहीं नहीं जाना है मेरे को वहाँ पे। एक कोई था म्यूजियम वाला, कुछ था कहीं पर, कन्वर्जन म्यूजियम की जगह है ये, नेशनल आर्मी म्यूजियम। जी जी जी। अच्छा एक बात देखो, सुबह, एक मिनट दादा, आपको मैंने सुबह मैसेज किया था कि मैं नो मोर जोहाद पे जुड़ा हूँ, क्योंकि वो पास ओवर चल रहा है, तो मैं जरा डॉक्टर साहब को वो कर दूं। अपना हिरोन में था, वहां पर क्यों नहीं आया? बंगाल में है, बंगाल की प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आया नहीं। ये हाल है यंग लड़कों का। तो मॉडरेटर है वहां पे। अरे आज तो अपने तो बंगाल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ हो सकता है भैया, जहाँ जरूरत है वहां आके बात करो। चलो ठीक है दादा। तेजवीर आज गलत नाम से आया हुआ है, परमवीर लिखा हुआ है। अरे अंदर घुसना। नो मोहर जिहाद का वो जो स्ट्रीम था दादा, डॉक्टर साहब ने खत्म कर दिया। ये हिरोन में देख तो है किधर, क्या क्या चल रहा है। बहुत पहले खत्म हो गया सर, मैं तो हाँ, जुड़ नहीं पाया, बहुत पहले खत्म हो गया। कहाँ घूम रहे अभी दूसरे चैनल्स में। आप दादा, विपी दादा, आप हिरोनमे को कितना समझा लो, वो ढीठ का ढीठ है। जी जी उसकी जी, मैं मानता हूँ। उसकी उसकी प्रायोरिटीज आर टोटली स्क्रूड अप। उसको पता ही नहीं कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। The end of British rule in India also spelled the end of the existing Indian Army and its administration. Field Marshal Sir Claude Auchinleck oversaw the division of this force. Around 260,000 men, mainly Hindus and Sikhs, went to India, and 140,000 men, mainly Muslims, went to Pakistan. The Brigade of Gurkhas, recruited in Nepal, was split between India and Britain. Many British officers stayed on to assist in the transition, including General Sir Robert Lockhart, India's first Chief of Army Staff, and General Sir Frank Messervy, who became Pakistan's first Chief of Army Staff. Individual units were split up. The 19th Lancers in Pakistan exchanged their Jat and Sikh troops for Muslims from Skinner's Horse in India. Wait. ये स्किनर्स हॉर्स एक एंग्लो इंडियन रेजिमेंट था. Skinner had a Rajput mother and a British father, and they used to wear bhagwa in those days. The uniform was bhagwa uniform.
Following independence, British हाँ, Army regiment was generally withdrawn from the subcontinent. हाँ, This included a well-planned and orderly withdrawal from Waziristan and other tribal regions of northwestern frontier. The well last planned, unit, well planned. well planned is, I mean, should be in inverted commas. Yes, Badly because they planned. planned कि हाँ कश्मीर में गड़बड़ करेंगे ये लोग, फिर अगर वहां से विड्रॉ करेंगे तभी तो जाएंगे वो लोग उधर. नहीं सर, well planned फिर क्या सर? तो lastly we'll see the results. The ultimate is horrific. The last unit to leave India was the 1st Battalion, Somerset Light Infantry, Prince Albert's, which embarked at Bombay on 20th of February 1948. Although these units are now available for other duties, Britain's global military capability was actually reduced, as it no longer had the Indian Army at its disposal. Many British officers were sad to leave India and the Indian soldiers. So this is true, sir. India and Pakistan's independence at midnight on 14th and 15th of August 1947 was a key moment in the history of the British Empire. India had been its cornerstone and many colonies had been secured in order to protect the trade routes to it. What's more, the British withdrawal was clearly seen as a precedent by other parts of the empire. This hastened their own calls for independence. देखिए, this hastened their own calls for independence. ये कपड़ा भी बदल लिया है. यूनिफॉर्म बदल गई. हाँ जी. Almost immediately after independence, tensions between India and Pakistan began to boil over. The first of the three full-scale wars between the two nations broke out over the princely state of Kashmir. The Maharaja there was reluctant to join either India or Pakistan. Pakistan therefore sponsored a tribal invasion aimed at annexing the state. Hasty withdrawal from northwest frontier. So some of these soldiers were disguised as tribals. All of them were not tribals. The army was there behind them. And I think the British commander there had some issues with the Indian commander here. जय भारती साहब, नायक नंद सिंह. Victoria Cross in Burma in 1944. But in 47 was killed fighting Pakistani forces in Kashmir. The Maharaja appealed to India for help, which was granted on the condition that he should accede to India. Indian troops were airlifted into Srinagar and managed to repel the Pakistani invaders. A bitter war raged across the state until a United Nations sponsored ceasefire in 1948. Former comrades in the old Indian army found themselves fighting each other. The Kashmir issue still remains unresolved and is the cause of much tension on the subcontinent today. जय भारती साहब, मन भर जाता है इनको देख करके यार. क्या दादा, मेरे को पता तकलीफ और क्यों होती है दादा. हम अपनी हिस्ट्री से आप लोगों को ज्यादा होता रहता. हम सर लोगों बंगाल का को we lose our words, तो आप लोगों को तो कितना तकलीफ होता. सर बंगाल का वो उस आदमी का दिखाइए ना, जो मैं भेजा था आपको व्हाट्सएप पे न्यूज में लिंक, गोपाल मुखर्जी का. एक दफा दिखाइएगा ना सर. फिर से भेज, तो इसमें थोड़ा सा प्राइवेट चैट में भेजो, वहीं से मैं खोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा. जी सर, एक सेकंड सर. गोपाल मुखर्जी मतलब गोपाल पठा. हाँ हाँ. गोपाल मुखर्जी मतलब गोपाल पठा.
जी नमस्कार जी, प्रणाम सबको। हाँ जी सुदीप, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। अहो भाग्य सत श्री हमारे अकाल कि जी। आप पधारे, अहो भाग्य सत हमारे श्री कि अकाल। आप पधारे। सत श्री अकाल जी। मैं अभी इधर उधर ना काम कर रहा हूँ, घर में आज संडे कल, तो इसलिए मैं बीच में सुनता रहूंगा, बीच में मैं भी अपने कमेंट्स दे दूं, पर मैं सुन रहा हूँ। परमवीर सिंह, तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार जी तेजस्वी सिंह जी, नमस्कार। क्या हुआ हिरणमय, हो गई तुम्हारी स्ट्रीम खत्म? हाँ थोड़ा लेट हो गया आज, अच्छा, ज्यादा ही लेट हो गया। वो थोड़ा जूस का कुछ रिचुअल था, इससे वो लोग वहां पे वॉल पे गए थे प्रे करने के लिए। तुम ओबामा को मुसलमान बना रहे थे वहां पर? अच्छा तुमने मुझे लगा कि ये बोल रहा है जूस का, कोई जूस ही होता। अच्छा जूस, ठीक है। जूस सॉरी वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है। हाँ नहीं नहीं, समझ गया, नहीं प्रॉब्लम, मुझे पता है यार। अभी अभी हम श्री गोपाल पाठक की बात कर रहे थे। जो ये विकिपीडिया है ना बहुत ही ज्यादा इस्लामिक और लेफ्टिस्ट से प्रभावित है। इन्होंने गोपाल पाठक के ऊपर जो पेज है वो बैन कर दिया। हाँ हटा दिया सर, हटा दिया पेज एकदम। हाँ तो मैं विकिपीडिया को मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया, और उनसे ज्यादा कोट भी नहीं करना चाहिए। उनका मे बी 30%, 50% गलत होती है उनकी चीजें। जी जी जी। एक तरफ से होता है उनका पॉलिटिकल एजेंडा खुद अपना ही है कुछ। मैंने पहले इतने सारे पेज बनाए थे, खास करके मुझे याद है पंजाब में हमारे एक सरहंद एक जगह है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को चिनवा दिया था। वहां पे शेख अहमद सरहंदी की मजार है। तो शेख अहमद सरहंदी ने जहांगीर को खत लिखा था कि जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जन देव, ये मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनको कुछ करो। तो 5वें गुरु को, गुरु अर्जन देव को लाहौर ले जाके उन्होंने मरवा दिया था। तो जो शेख अहमद सरहंदी की जो मजार है वो आज भी वहीं पे है इंडिया में, और पाकिस्तान से लोग आते हैं वहां पे कवालियां गाने। तो मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके ये सब लिख दिया, उसके पेज पे, विकिपीडिया पे। तो उन्होंने मुझे पहले तो मैं उनका एडिटर भी था, सब कुछ था, विकिपीडिया में लिखता रहता था डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने जब सब लिख दिया तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम रेफरेंस दो, तो मैं रेफरेंस दी, बुक्स के नाम भी दिए, सब दिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर लिखा, फिर डिलीट कर दिया। तो मैंने तो ये देखा है कि ये जितने भी कोई फैक्ट हम लिखे औरंगजेब के बारे में, जितने भी ये सूफी संत है, जिन्हें सूफी संत कहते हैं, उनके बारे में कोई बात लिखे तो डिलीट कर देते हैं। फिर आपका ये जो चिश्ती है इधर वाला, उसके बारे में मैंने लिखा, वो भी डिलीट कर दिया। तो मैंने विकिपीडिया को तो कहा कि सत श्री अकाल, आज से तुमसे नहीं बात कर रही मैंने। विकिपीडिया का ओनर कौन है संदीप? विकिपीडिया कोई ओनर तो कोई नहीं है, पर ये जॉर्ज सोरोस वगैरह ये सब बड़े बड़े आदमी पैसे देते हैं उन्हें, और ये कहते रहते हैं कि हम फ्री में सेवा कर रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जितने भी बड़े बड़े एडिटर्स हैं, ऐसा विकिपीडिया होता है कि जैसे आपने कोई नया पेज बनाना, आप लिख दें जाके। अगर आपने कोई पेज सिंपल है, जैसे आपने अपने गांव के बारे में लिख दिया, ये मेरा गांव तब बना था, ये है, वहां पे इतने लोग रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे कोई थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात आ जाए, वहां पे उनका सर्टेन एजेंडा है, लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट। तेजवीर जी दादा। अगर आज तुमने कुछ बोला नहीं तो मैं तुम्हारे को दोबारा लूंगा नहीं है, मैं इसमें अंदर स्ट्रीम में। तुम बोलते नहीं हो, सुनते रहते हो बस। दादा बड़े हो तो आपका बोलना ज्यादा उचित लगता है मेरे को। अरे आपके सामने हम बच्चे क्या बोले? यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तुम ये तो बता सकते हो कि अपने घर में बच्चों को बताया कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पूर्वजों ने कितना सहा था। मैं मानता हूँ कि आपके घर वालों ने भी सहा होगा, लेकिन और लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर किया कि नहीं किया, बताया कि नहीं बताया पब्लिक को? दादा जितना हो पाता है अपन कर ही रहे हैं, देखिए। गुड गुड गुड, दैट्स इट। यही तो हमारा इंटेंशन है। हमारे को यहाँ पर 50 साल से ऊपर हो गए, हमारे को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज जाए और अपने बच्चों को बता सको तो दोबारा इस तरीके का कोई अगर सिचुएशन आएगा तो संभल सकते हो। हमारा यही इंटेंशन है दादा। आज क्या हुआ कि आज एक अपना हमारी कंपनी का लड़का था, वो बोल रहा है कि मैं अपना कांग्रेस को वोट दूंगा। तो मैंने फिर अपनी वीडियो अपना वगैरह लो पूरा सुनो और उसके बाद में मेरे पास आना।
और 3 घंटे बाद मेरे पास आया, बोला ठीक है अब नहीं दूंगा। ये चीज है। अच्छा अच्छा हुआ सर। जय भारती साहब बधाई हो। संदीप जी बधाई हो। क्या 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 हुआ? मैं थोड़ा मिस कर गया। तेजवीर दोबारा बोलो। तेजवीर दोबारा बोलो। ऐसे ही हमारी कंपनी में एक लड़का था, तो बोल रहा था कि इस बार तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तो मैं ठीक है, ये अपने जो भी अपने 2-3 दिन के डिस्कशन हुए अपने, तो मैंने वीडियो दे दी उसको। तो वो वीडियो के बाद 3 घंटे बाद बोल रहे हैं, नहीं अब नहीं दूंगा मैं, अब बीजेपी। हाँ चलो ये हुई ना बात। हाँ, गुड जॉब, अच्छा काम किया आपने। नहीं, लेकिन तेजवीर एक बात बताओ, उसने जी दादा। बताया कि कौन सी चीज उसको लगी ठीक जो टर्निंग पॉइंट था? देखिए वो उसको इतने घपलों का नहीं पता था, तो वो ये बोल रहा था कि बीजेपी है, अडानी अंबानी की सरकार है। तो मैंने ठीक है, तो पहले सिम की बात मैंने अपना अंबानी का जैसे रेफरेंस दिया, मैंने बोला कि एयरटेल में पहले 300 रुपए का 1 महीने का रिचार्ज करवाते थे आप, 1 GB मिलती थी, वो भी स्पीड नामात्र थी। तो अभी देखो, तो अडानी अडानी अंबानी है जो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? फिर ऐसे उनको धीरे धीरे समझ में आ गई। हाँ नहीं, ये अंबानी अडानी के बारे में कहते रहते हैं, टाटा के बारे में क्यों नहीं कहते? अब अभी टाटा ने भी तो इंडिया की नई पार्लियामेंट बनाई है ना, टाटा की कंपनी ने, राइट? अब मुझे ये समझ नहीं लगती, सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि अडानी अंबानी इधर गुजराती हैं, राइट? आई थिंक जी जी, एयरसेल दोनों का मालिक गुजराती हैं। कौन है? भारती मित्तल। हाँ जी। भारती मित्तल। भारती मित्तल का इतिहास मालूम है किसी को? नहीं सर। चलो उसको बाद में बताएंगे, दैट इज नॉट टॉपिक टुडे। बट हमारे वो आज भारती मित्तल इसीलिए है कस्टम वालों की वजह से। लेकिन मेरा एक सवाल तेजवीर से है। जी दादा। तेजवीर, आपके जो बंधु हैं, दोस्त हैं, जो क्लास, उनको इसलिए है कि मेरे को डेटा या कनेक्शन सस्ता मिल रहा है। 84 में क्या हुआ, किसने कराया, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जय भारती जी की आज की जो जनरेशन है ना, इसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बस वो अपना टिकटॉक जैसे ही अपना ऐप है वो तो बैन हो गई है, बाकी जो आजकल रील वगैरह चल रही है उन्हीं पे इनको मजे लेने हैं। बेड़ा गर गया यार, ये क्या। ना तो कोई फैमिली पे कोई ऐसा ट्रेड हुआ है जो हमारे फैमिलियों के साथ में हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो समझते भी, लेकिन कंफर्ट जोन है, बस वही चल रहा है उनका। हम अपनी ट्राई करते रहेंगे, समझ पाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर भगवान मारे इनका। ठीक है। चलो कम से कम हमारा इतना तो फायदा हुआ जी कि दादा कंटिन्यू कीजिए आप। तेजवीर ने एक बंदे को तो कम से कम गलत रास्ते में जाने से बचा दिया। चलो ठीक है, अभी गोपाल मुखर्जी का आर्टिकल पढ़ते हैं। हाँ, it goes मजूमदार साहब, beyond. over to you, हाँ जी, please. हाँ जी. It goes beyond saying that if Gopal Mukherjee had not spearheaded the Hindu resistance from 18th August 1946 onwards against the state-sponsored Muslim mob violence, the entire area now known as West Bengal would have become a part of Pakistan in 1947. State-sponsored because of Surawardi. 2020 से पहले मुझे गोपाल पाठक के बारे में पता ही नहीं था। मेरे पिताजी बताए थे मुझे पता नहीं था। For quite some time, I've been getting requests to write a detailed account. जय भारती साहब, हिरन में के थोड़ा सा ब्रेन वॉश करो। क्या बंगाल में हो और एक बंगाल के इतने, क्या राइट वर्ड है, मैं उर्दू का वर्ड बोलना नहीं चाहता,
नहीं बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। शख्सियत होती है ना, शख्सियत को क्या कहते हैं, मतलब बंगाल का द सन ऑफ बंगाल, बंगाल का बेटा, उसके बारे में तो पता होना चाहिए हेरमन में, आप तो बंगाल से हो। जो गलतियां मैंने तुम्हारी उम्र में की हैं तुम वो मत करो। मैं पिछले 2-2.5 साल से पढ़ रहा हूँ या 3 साल से पढ़ रहा हूँ, अब मुझे काफी कुछ पता लगने लगा है। यही चीजें मेरे को कम से कम आज से 25-30 साल पहले पता होनी चाहिए थी। गलती की ना, लेकिन फिर भी शुरुआत तो किया। तुम वो गलती मत करो जो हम लोगों ने की है। किताबें पढ़ो, देखो क्या है। जय दादा, इसमें अपना गोपाल पाठा जी वाले में भी अपना ये गांधी का भी अपना तगड़ा रोल था कि उनको अपना हाँ जी, हाँ जी। बैकफुट पे लाने के लिए। अच्छा चलो। For quite some Makiko time, Shma? I've been getting requests to write a detailed account on Gopal Mukherjee, Gopal Patha. In the context of Direct Action Day, where his resistance against the Muslim League not only saved many Hindu lives, but also stopped Jinnah and the Muslim League from getting their desired results. While researching on the internet, it was pretty disheartening to find that not much has been documented about the man who once single-handedly saved the Hindus in Kolkata during Direct Action Day. Only in India, and perhaps only among the Hindus, a large section of which has been systematically brainwashed by the Marxists to hate their own religion, it is possible to find such apathy, almost bordering on irreverence, towards their own savior heroes, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. The result of today's youth not knowing. हिरन में प्लीज नोट इट समवेयर. तुम किताब कॉपी लेके बैठे हो ना, इसको पढ़ सुन देख लो क्या है ये, क्या लिख रहे हो. Brainwashed by the Marxists. ये स्टैचू बना रहा है सुभाष बोस का. The bloodied history of India's partition will remain incomplete without a mention of their Direct Action Day or the great Calcutta killings of 1946, when Calcutta was in the grip of fanatic Muslim mobs that ran riot, killing and raping Hindu men and women. In retaliation, a group was formed by the Hindus, led by Gopal Chandra Mukhopadhyay, that effectively managed to save Calcutta from falling to the well-chalked-out plans of the Muslim League to separate the whole of Bengal from India, a plan that was indirectly backed by the British colonial government. That was indirectly backed by the British colonial government. Uncontrolled and brutal communal violence in Calcutta, Noakhali and parts of Bihar forced the Congress leaders to accept the partition of India based on religious lines. Prior to the partition, the British colonial government, with their divide and rule policy, helped in the formation of the Muslim League, and soon, inevitably, it led to the establishment of the two-nation theory by the Muslim League. By the एक मिनट बाजवा साहब. हाँ जी. ये क्या लिख रहा है? Uncontrolled and brutal communal violence in Calcutta, Noakhali and parts of Bihar forced the Congress leader to accept the partition of India. Now, आप लोगों ने जो झेला है ना, जय भारती साहब के पूर्वजों ने झेला है या तेजवीर के पूर्वजों ने झेला है, इस वजह से झेला है. वहीं के लोग, मतलब ये बिहार और बंगाल के लोग जो हैं, कलकत्ता में इतना मास्टर नहीं होता था तो शायद कांग्रेस तैयार नहीं होती थी. हाँ जी. या इतनी जल्दी में नहीं होते. नहीं, जय भारती साहब ने पूछा था ना अभी कि बंगालियों ने तो डिमांड नहीं किया था तो उनको क्यों पार्टीशन किया. एक्चुअली शुरुआत उधर से ही हुई थी. ये यहाँ पे लगी थी पहले नोआखली में. हाँ. नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो बंगाल का मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान अगर ठीक है डिवाइड होगा तो ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ये बांग्लादेश है कोई और ना, बंगाली लैंड व्हाट एवर इट इज. इस तरह ये सवाल था मेरा. तो उसको
एक्चुअली क्या है, इनका सरिया में लिखा हुआ है सर कि हमारा जो राजा होना चाहिए, जो हमारे ऊपर शासन करने वाला होना चाहिए, वो वही होना चाहिए जो मक्का और मदीना को माने। उनके दिमाग में ये हुआ था, जितने भी मुसलमान थे वहां पर बंगाल में, ये सब चाह रहे थे कि हम लोगों के ऊपर कांग्रेस राज ना करे। इस चक्कर में वहां पे दंगे शुरू हो गए। देखिए हमारे को मुस्लिम लीग तो थी ना वहां पर, जी जी। एंड इट वाज वेरी एक्टिव ओवर देयर। अरे एक मिनट बीबी दादा, ये आपके चैट में ये क्या दादा रावण अफगानिस्तान में सरिया वाले आ तो गए, अभी क्यों भाग रहे हैं वहां से फिर, है दादा? एक मिनट दादा मैं ये बोल रहा हूँ कि दादा मैं ये बोल रहा हूँ अफगानिस्तान में सरिया वाले आ तो गए, तो अब क्यों भाग रहे हैं अपना जहाजों के पहिए पकड़ पकड़ के? अब क्यों पसंद नहीं आ रहा है, अगर इतना ही पसंद है तो उनको? आपस में उनका कुछ भी कोई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा नहीं करना चाहिए ना। अभी सीधी बात तो ये है, सीरिया में सिया है, वो इजराइल से झगड़ा करते रहते हैं, और अरब ये सऊदी अरेबिया में सुन्नी है, वो झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे ही बाकी लोग हैं, दूसरे से झगड़ा करेंगे, दूसरों से झगड़ा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं वो। देवाती साहब आप क्या बोल रहे थे? अरे वो चैट में रावण है, तो रावण जी हैं तो फिर आए ना पैनल में, फिर करें ज्वाइन। वो मैं आपका ध्यान उधर ले जा रहा था। हाँ ठीक है, पढ़ो सर। By the 1930s, the Muslims in Bengal had already accepted the two-nation theory as their political doctrine and were ready for a division of Bengal based on religious lines. The Muslims in Bengal believed in the Muslim League propaganda, which said, by virtue of one's religious belief, a Punjabi or an Uttar Pradesh Muslim is closer to him than his next-door neighbor who belonged to some other religion, Hinduism. Deprivation of Hindu minority in Bangladesh, living with vested property. ये कोई reference है सर बुक का. The Muslim League's demand and stubbornness for a separate nation for the Muslims not only fractured India in 1947, but also caused a huge bloodshed in 1946, undivided Bengal and Bihar with the start of the Direct Action Day riots. The seeds of the Direct Action Day communal riots were sowed when the Cabinet Mission in India, 1946, that was formed to arrange transfer of power from British authority to Indian leadership, proposed that a plan for the formation of the new Dominion of India, which failed to address the Muslim League's proposal to divide the country into a Hindu majority India and a Muslim majority Pakistan. To protest against this proposal exclusion, the Muslim League decided to call for a Hartal general strike on 14th of August 1946 and named it as the Direct Action Day, wherein the League decided to show its muscle power and assert its demand for a separate nation for the Muslims. A Muslim League Council meeting was held from 27 to 29 July 1946, where a resolution was passed stating that the Direct Action Day aimed at unfolding a direct action to force the creation of a Muslim majority Pakistan. Jinnah was clear enough in his indications of his intentions, where he boldly stated that he will have India divided or India burned, and the Muslim League had said goodbye to the constitutional methods and was ready to create trouble, adding further fuel to the already charged up Muslim communal sentiments were the pamphlets, writings by the then Mayor of Calcutta, Syed Muhammad Usman, that declared, "We Muslims have had the crown and have ruled. Do not lose hearts. Be ready and take swords. O Kafir, your doom is not far." The great partition. Please stop. Let public understand. दोबारा पढ़ो इसके बारे में. This narrative is continuing throughout India now. We Muslims have had the crown and have ruled. Do not lose hearts. Be ready and take sword. O kafir. Wow. तो ये चीज तो हाँ, तो ये दादा ये चीज तो केरला में अभी पीछे ये जो मोपला जेनोसाइड का वो था कि वी हैवंट थ्रोन आवर स्वॉर्ड्स, ये आया था ना पिछले साल केरला में, बोला इन्होंने कि हमने अभी तलवारें फेंकी नहीं,
जो 100 साल पहले मोपला में वो आया। ये तो नैरेटिव है, ये तो चल रहा है। और ये रेफरेंस किधर से ले रहा है? द ग्रेट पार्टीशन इन मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 एडिशन पेज 64 में यास्मीन खान ने लिखा है। जी जी जी, तो मुसलमान ने लिखा है इसको। This was supported by Hussain Shahid Surawardi, the then Bengal Chief Minister, bastard, who in a idiot, speech साला, indirectly promised no actions were to be taken against the armed Muslims should they decide to unleash their activities in the city. यह भी यास्मीन खान का ही रेफरेंस है। Jinnah specifically used the religious and communal symbols and idioms to charge up the Muslim community into starting violence for a forced carving out of a separate nation ये चाचा सुन लो, आपके चाचा ने क्या किया है यहाँ पर as a Muslim homeland. There are also claims that the सैयद Bengal चाचा Chief चैट में है, Minister. सुने सैयद चाचा को सुनाओ, इसको फिर से सुनो। There are Jinnah also especially claims used the religious and communal symbols and idioms Symbols, to right? charge up the Muslim community into startling violence for a forced carving out of a separate nation as Muslim homeland. दादा पढ़ो। there are also claims that the Bengal Chief Minister Surawardi, during the communal violence of 16th August, possibly removed Hindu policemen from their jobs. यह भी यास्मीन लिख रही है। यास्मीन अपने बुक में पेज 184 में लिख रही है, जिसको पढ़ना है तो यास्मीन खान की बुक पढ़ लो, इंडिया वालों पढ़ लो। जितने भी बैठ करके एक्स मुस्लिम चैनल देखते हो, इनको पढ़ो तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। वहां पर वो बेवकूफ इतने दिन से बकवास किए जा रहा है और उसके खिलाफ मोहम्मद जुबैर कुछ भी नहीं लिखता है साहिल के खिलाफ। अरे दादा, कोई बोला था उसके बारे में, मोहम्मद जुबैर ने दुनिया भर का बवाल मचा दिया था। उसने एक नया बवाल ये अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। आज अरे नरसिम्हा और आज वो उसको क्या बोलते हैं, वो हैरिस सुल्तान को बड़ाई कर रहा था भाई, मैंने सुना वीडियो में। यति नरसिंहानंद है ना, वो हैरिस सुल्तान की बड़ाई कर रहा था, गालिब कमाल की बड़ाई कर रहा था। व्हाट सॉर्ट ऑफ बाबा ही इज। इसीलिए दादा मैंने पहले भी कहा था, मेरे जैसे हिंदू को इन बाबाओं पे, जितने भी सैफरन क्लॉथ ये बाबास हैं, ट्रस्ट ही नहीं है। इन्होंने किया क्या है? ये मठों में बैठे हुए इनकी कर क्या रहे हैं? ये भी सारे पैसा कमा रहे हैं साहब, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं मंदिर नहीं जाता। गधे कहीं के। जी जी, गुजरात में कोई काजल हिंदुस्तानी लड़की है, उसका क्या, उसको क्यों अरेस्ट कर लिया? क्या कंट्रोवर्सी चल रही है दादा? उसको भी नुपुर शर्मा बना दिया क्या? वो अजीत भारती बात कर रहा था, देखूंगा इसके बाद कि क्या चक्कर है। काजल हिंदुस्तानी क्या बोला उसने? आग लग रही थी ईस्ट में और बेचारा झुलस गए वेस्ट वाले, पेशावर वाले झुलस गए इस चक्कर में। तो नहीं दादा, उस दिन मेरे चाचा जी ने जो बोला है, तो इसका मतलब हरासमेंट तो चल रही थी। अगर हड्डियां फेंक रहे हैं आने जाने वाले हिंदुओं को, तो हरासमेंट तो चल रही है। अब बेसिकली वही है कि इनको भी निकालो इस गांव से, जो भी 5-6 घर रह गए हैं। वो तो जो उनकी वो तो टैक्टिस है, जैसे ही आप आए मेजोरिटी में और भाई ये हमारा इलाका है, बस निकालो यहाँ से, इनको कन्वर्ट करो और मार दो, नहीं तो निकाल दो। हाँ, काजल हिंदुस्तानी ने ना रामनवमी की शोभा यात्रा में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में कहा था। बस इस बात पे उसके ऊपर फतवा लग गया। नहीं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, इसका मतलब कोई हिंदुओं के लिए कोई बोल ही नहीं सकता। राइट, और उस फतवा भी लग गया, कोर्ट में केस भी हो गया उसके अगेंस्ट के, उसने दंगे भड़काए हैं। D.N. Panigrahi, the author of India's Partition, the story of imperialism in retreat, also confirmed the inaction of police and army on those ghastly days after speaking to a foreign journalist present in Calcutta on that day, when unabated killings and rapes were carried on by Muslim mobs for 48 hours.
it is said that the army was brought in only after it was felt that the Europeans might be attacked, showing the collusion between the League and the British colonial government. It was this direct action day of the great Calcutta killings on 16th August 1946 that finally marked a psychological break between secular Hindus and the communal demand by the Muslims for a separate Islamic state named as Pakistan. Please note एक the मिनट word रुको, secular. कितने जितने भी देख रहे हैं 8-10 जितने भी देख रहे हैं, ईमानदारी से बताना, किसी ने 16 अगस्त 1946 का दिन सुना है? किसी भी पॉलिटिशियन ने, कांग्रेस के पॉलिटिशियन ने या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कभी बोला कि 16 अगस्त 1946 क्या हुआ था? नहीं दादा, कोई याद करता है? एक आध वीडियो मिल जाएगी, कोई याद नहीं करता। क्यों नहीं याद करता है? ये दो मैं रखूंगा। एक साल पहले वीडियो वाली आजादी से, 15 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त 1947 से एग्जैक्टली एक साल पहले। एग्जैक्टली एक साल पहले। कोई याद करता है? किसी को याद है? किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा 16 अगस्त को क्या हुआ था? किसी ने कोई नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं है। अभी भी 8-9 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, इन्होंने अभी सिलेबस चेंज नहीं किया और उसमें डायरेक्ट नहीं लिखा कि हाँ जिन्ना ने और सोहरावर्दी ने क्या किया था कलकत्ता में, जिसके चक्कर में पाकिस्तान बेचारे पंजाब का वहां पर डिवीजन हो गया फोकट में। एंड दिस वाज ऑल विद कनाइवेंस ऑफ महात्मा गांधी। मैं बोलता हूँ महात्मा तो बोलना ही नहीं चाहिए उसको, गांधी बोलो, मोहनदास करमचंद गांधी बोलो, महात्मा बोलो ही मत उसको। नहीं तो नेहरू को पंडित किस लिए बोलते हो? किस बात की पंडिताई है? अरे पीछे कौन बोल रहा है यार? ये किसी का ना कोई पीछे बातें कर रहा है यार, उसको म्यूट कर लो। पता नहीं कौन कर रहा है, मैं निकाल दूं क्या सबको एक तरफ से? ये हिरन में के यहाँ पे कोई बात कर रहा है लगता है, उसके यहाँ पे हो रहा है कुछ। नहीं, मैं तो म्यूट था। मत करो यार, हम लोग बात कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है और कुछ नहीं होता है। सदी, मैं एक बात पूछूं आपके कमेंट पे, ये जो काजल हिंदुस्तानी ने लिखा है, अब फिर कह गए यार भारती कैसी बात करते हो? एक हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से शादी करने की जरूरत क्या है? क्या हिंदू लड़कियां नहीं है, सिख लड़कियां नहीं है? क्या बोला सर? क्या मीन, मुझे आप ही समझ लगी इसे, ये मुस्लिम इतना टची क्यों है इस बात पे? पता नहीं, हिंदू लड़के वो पाकिस्तानी लड़कियों को उधर लट्टू हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ इनका सर है, मैं बोलना नहीं चाहता। देखिए, आप सबसे एक बात मैं साइंटिफिकली, साइंस की तरफ से कहूंगा कि जो मुस्लिम्स है ना, ये अपनी फर्स्ट कजन में शादी करते हैं, तो इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है ना इनका, ये भी बहुत खराब है। इससे अगर कोई लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे या लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे पैदा होंगे वो हमेशा से ही उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कजन में शादी करते आ रहे हैं। हाँ, मैं तो अच्छा, मैं एक बात बता दूं फॉर द रिकॉर्ड, रावण जी जुड़ना चाहते हैं परंतु वो जुड़ नहीं पा रहे, बोल रहे हैं कि स्ट्रीमर बाबा पासवर्ड मांग रहा है। क्या पासवर्ड मांग रहा है? सबके सबके जुड़ते हैं, उनको पासवर्ड कहाँ से चाहिए? हाँ, उनको मांग रहा है, रावण जी जुड़ नहीं पा रहे। मैंने स्ट्रीम यार्ड दे रखा है, सीधा का सीधा आना ही अंदर, उसमें क्या फर्क? अब बाकी सबको पासवर्ड चाहिए क्या, जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, शायद उनका कोई प्रॉब्लम होगा, मैं उनको बोलता हूँ। एनीवे, मजूमदार आगे बढ़ो। जी। As per निशाद हजारी, ध्यान से सुनो इस आर्टिकल को, और इस वीडियो को प्लीज सर्कुलेट करो अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं कि हाँ क्या हुआ था, ये कोई नहीं बताता है। नीचे से पढ़ूं सर? As per Nishad Hajari, author on the Partition, no one knows the death toll that would become known as the Great Calcutta Killings. Many bodies were washed down the Hooghly or consumed in fires. The generally accepted estimate is 5,000 Calcuttans were killed, while another 10 to 15,000 had their bones broken, limbs hacked off, or bodies charred. The entire objective of Direct Action Day was to flex the muscle power of the Muslim League and to show that Hindus and Muslims were incompatible. Dada, एक मिनट. This attitude of Bengali Muslims in Bangladesh still has not
फेडेड, अभी भी उनके दिमाग में वही घुसा हुआ है, इसीलिए वहां से हिंदुओं के भगाते हैं और हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं मतलब सत्यानाश करते हैं वो लोग। हर साल होता है सर। The killing of Hindus started with the murder of two Bihari milkmen in Beliaghata on Friday, 16th August, early morning, and soon Hindu-owned movie theaters, hotels, and shops were attacked and set on fire by Muslim mobs. Motivated by Surawardi's assurances in the League's rally, violent Muslim mobs, led by criminals like Mullah Chaudhary and Meena Punjabi, started widespread attacks on Hindu homes and shops. There were reports of rampant killings of Hindu men and boys, while Hindu girls were kidnapped and raped or kept as sex slaves. As per the reports by a police officer, Golok Bihari Majumdar, bodies of naked and hacked Hindu girls were seen hanging from a slaughterhouse in central Calcutta. Sir, एक चीज बताऊं सर, this gentleman is related to me. जो पुलिस ऑफिसर का नाम दे रहा है ना, तो हेडक्वार्टर्स में उनका नाम अभी भी लिखा हुआ है. He is related to me. बीबी दादा एक बात बताओ, एक मिनट दादा एक मिनट रुक रहा, वो अपने प्रेम जी है ना जो पंजाब से जो आते हैं, वो पता कहाँ पर है अभी? एक्स मुस्लिम हक वाला के चैनल पे. तो मैं भी देखा हूँ सर. आप म्यूट पे हो सर. मैं बोला अगर वो इधर कभी आएंगे भी तो मैं उनको लूंगा नहीं है, बस बोलना कि उनको ले लो. नहीं लीजिए, लेकिन सुना भी दीजिए थोड़ा सा. हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए ना. नहीं फिर वो डाइवर्ट करते हैं ना बात को. मजूमदार साहब हम लोग बोल दीजिए. नहीं आप बोल दीजिएगा ना कि we'll stick to the topic only. पंजाब की हालत देखो, कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी चल रही है, इस्लामिक कन्वर्जन चल रही है. अभी वो जयपुर डायलॉग वाले ने एक वीडियो शेयर किया सिख का, वो गाड़ी चला रहा है और वो कह रहा है कि मैं कन्वर्ट हो गया और वो इस्लाम के बारे में कर रहा है. वो देखा जयपुर डायलॉग के, अगर उस पर एक छोटा सा वीडियो है. और मैंने अभी वो इफ्तार पार्टी, मतलब वो बोल क्या रहा है यार. अच्छा सर एक चीज पूछूं मैं सर, ये पगड़ी वगैरह सब दाढ़ी वाड़ी रखे हुए हैं, फिर कैसे बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन हो गया होगा? नहीं, इससे तो कटवाए हुए हैं, ये कट सिख है. लेकिन अच्छा. आपने बात बिल्कुल ठीक की है. ये जो ये भगवान ये मान से पहले जो था चन्नी, ये भी तो क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है ना. केसदारी सिख है. तो प्रेम जी, जय भारती साहब जी दादा, आज मैंने एक बहुत बड़ा करिश्मा देखा. वो ये था कि वो जो है ना अपना क्या बोलते हैं आरजू काजमी, हाँ, वो मैली सरकारी के चैनल पे गई थी और वो हिंदुस्तान के बारे में बड़ाई कर रहे थे. मतलब ये है कि इन दोनों पाकिस्तानियों की, जो हमारे हिंदू लोग हैं जो इनके चैनल में जाते हैं और इनको सुपर चैट और ये देते हैं ना, उसके अगर ये ना जाएं वहां पर तो इनका जीना मुश्किल हो जाए, खाना पीना मुश्किल हो जाए. अब यह है कि आरजू काजमी कौन बुलाता है? संजय दीक्षित बुलाता है, जयपुर डायलॉग वाला जी. तो और दादा मेजर गौरव आर्य जी के पे चैनल कई बार डिस्कशन होती रहती है ना उनकी. नहीं, मेजर गौरव आर्य का देखो, मैं वो फौजी है, वो क्या करता है हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो बाद में जब पाकिस्तान की मारता है ना 20 मिनट में 25 मिनट में दबा के धो देता है. वो गौरव आर्या उसको बुलाता नहीं है. वो गौरव आर्या को रिक्वेस्ट करती हो कि आजा भाई, मैं भी तेरे मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हूँ और इंडिया के फेवर में बोलती हूँ, जिससे कि उसका यूट्यूब चैनल आगे चलना शुरू हो जाए और हिंदुस्तानी लोग जाकर के वहां पर देखें. जिसका बाप यहाँ से कड़ा माने कड़ा एक जगह है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का कत्ल किया था. मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर है, जहां पर हमारे मुंडन होते हैं, वहीं पर शीतला माता का धाम है. वो वहां पर उसका था. और इसका जो दादा था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले, जिस समय गुलाम इंडिया था उस समय जज था. फिर भी ये भाग के गई है, इसका परिवार यहाँ से भाग गया है. मतलब बोलता कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान से भाग के गया है, हिंदुस्तान को छोड़ के गया है,
तो उसका डीएनए में घुस गया है और वो हिंदुस्तान से कभी प्यार कर ही नहीं सकता यार। मैं तो इस पर बिलीव पे हूँ। तो 4 दिन अभी से हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने सिर्फ हमारे धर्म के चक्कर में, पैदा होने के टाइम में किसी का धर्म होता है क्या? बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन हिंदू फैमिली आई एम हिंदू, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ मुस्लिम फैमिली यू आर मुस्लिम। तो तुम हमको क्यों मारोगे भाई? नहीं, you are still Hindu. If you're born in a Muslim family, you are still Hindu. If you're born in a Christian family, you are still Hindu. The reason is, दादा, they have to go through ritual. हाँ, भाई कान में सुनाओ मेरे कलमा, हाँ, कलमा पढ़ो हाथ में और कटवा चर्च में दो। जा बिल्कुल, और चर्च में जाकर आपको क्रिश्चियन हो तो आपकी बैप्टिज्म baptism. क्रिश्चियन होती है। बपतिस्म क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो हाँ, करो। हाँ, हमारा कुछ हुआ क्या? क्या कुछ हुआ? पैदा हुए, बात खत्म हो गई। एनीवे, जो जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। प्रेम जी की ऐसी की तैसी, हमें क्या करना है? हमारे को यहाँ पर कोई कॉमर्स के तरीके से हम नहीं वो कर रहे हैं। हम लोग 4 जने बैठेंगे, अपना हेल्दी डिस्कशन करेंगे, निकल जाएंगे। कोई ना आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? जाके घर में 4 रोटी और खा लेगा। पीके किधर है आज? जब बात हुई थी कि आज इस पे तीसरा पार्ट होगा, किधर है पीके? वो अपने काम में बिजी होगा। दादा वो रिक्रूटिंग यूएस के लिए करता है। आज तो संडे है। आगे चलो सर। Yes, sir. No, this is very important, sir. Bodies of naked and hacked Hindu girls were seen hanging from a slaughterhouse in central Calcutta. हिरण में नोट कर ले अपने कॉपी में। एक मिनट। As per report by a police officer, Golok Bihari Majumdar, Bihari. bodies of naked and hacked Hindu girls were seen hanging from a slaughterhouse in central Calcutta. ये को नोट कर लो। हाँ। As the murders and rapes continued on 18th August, Gopal Chandra Mukhopadhyay or Gopal Patha decided to stand up against this state-sponsored Muslim violence on Hindus. He belonged to a family of freedom fighters and was a nephew of the revolutionary Anukul Chandra Mukhopadhyay. Gopal Mukhopadhyay was joined by Yugal Chandra Ghosh, Basant, a wrestler, and Vijay Singh Nahar, and together they formed the Bharat Jatiya Bahini, an organization that armed Hindus with weapons like with pistols sourced from American soldiers, lathis, spears, knives, swords, and also acid bombs. Hundreds of Hindus, Bengali, Sikhs, Odiyas, Biharis, and UPites from the various Vyam Samitis of Calcutta and its adjoining areas, along with Arya Samajis and members of the Hindu Mahasabha, came forward to take part in the resistance. As the Hindu resistance gained ground, the number of Muslim casualties rose, and soon the latter panicked and started leaving the city, even though the clashes continued for nearly a week. On 18th to 20th August, Gopal Patha and other Hindu leaders specifically identified and killed the Muslims who had taken part in rapes and killings of the Hindus. Members of the Muslim National Guard, a militant body associated with the Muslim League, were killed in large numbers. However, no Muslim women or children were touched by the Hindus during the resistance. Point to be noted. During the resistance. By 20th August, Suravarti realized that he couldn't displace the Hindus from Calcutta, and his dreams of making the entire Bengal along with Calcutta a part of Pakistan would not be fulfilled. In order to save himself and his government. बाजवा साहब। जी सर। बाजवा साहब सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ जी। रेडक्लिफ ने क्या बोला था कि हमने कलकत्ता को बंगाल को नहीं दिया, इसलिए हमने और को दे दिया। भाई बड़ा राइट। हाँ जी। उनको। हाँ जी। अरे बेवकूफ, द रियल रीजन वाज दिस। हाँ। गोपाल पाठा।
हाँ जी सोहरावर्दी ने यहाँ सोहरावर्दी ने रियलाइज किया कि कलकत्ता को हम ले नहीं सकते, उस चक्कर में उन्होंने प्रेशर मारा होगा रेड क्लिफ को कि हमको लाहौर दे दो। हाँ जी या एग्जैक्टली In order to save himself and his government, Surawardi, along with J.J. Ajmeri and Sheikh Mujibur Rahman, kindly note this name also, sir. And an And idiot number one, जिसको founder इंदिरा जी of ने सपोर्ट Bangladesh. किया था मुक्त रानी के चक्कर में बांग्लादेश बनवाया। सुनो, देखो इसको। And a member of the Muslim League appealed to Gopal Mukherjee. Please, Majumdar Dada, 1 minute. How many people Yes, sir. know that Sheikh Mujibur Rahman was also involved in Calcutta I knew massacre? it, sir. I knew it, sir. नो, नहीं पता दादा। मुझे पता है सर, मुझे पता है शेख मुजीबुर रहमान आल्सो इन्वॉल्व इन कलकत्ता मैसेकर। मैं यही बोल रहा हूँ कि how Hindus will be saved in Bangladesh when his daughter is ruling. यस सर, अग्री। अभी क्या हो रहा था हिरन में, अभी हो क्या रहा था, जय भारती साहब बोल रहे थे कि हिरन में एक बंगाली है फिर भी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि हम लोग बंगाल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं बोला ठीक है भाई, उसको जहां जाना है वहां पर जाए, जो कुछ करना है तो करे। कल हमने तुमको बोला था ना बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइम भी मतलब हम अपने डाल दिया था कि 9:30 पे शुरू करेंगे। तो एनीवे यू मिस सर्टेन पोर्शंस, तो शुरू से देख लेना फिर से इस वीडियो को, और जितने भी तुम्हारे बंगाली दोस्त हैं उनको सबको दिखाना कि ये तमाशा था बंगाल के पार्टीशन का। बंगाल का अगर पार्टीशन, बंगाल में अगर सोहरावर्दी नहीं होता था तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ पंजाब नहीं डिवाइड होता था। कुछ नहीं होता, एकदम सही। ये बेचारे बाजवा और तेजवीर और जय भारती साहब आराम से अपनी जगह पे रहते थे। जी हाँ, सही कहा। The real reason of this partition was 16th August 1946 direct action day and Calcutta massacre. पढ़ता हूँ सर। In order to save himself and his government, Surawardi, along with G.G. Ajmeri and Sheikh Mujibur Rahman, the founder of Bangladesh and a member of the Muslim League, appealed to Gopal Mukherjee to end the killings. Gopal Mukherjee agreed on the condition that the Muslim League would first make its members lay down their weapons and promise to stop all killings of Hindus. Finally, on 21st of August, Bengal came under direct viceroy's rule and the army was deployed in the city. To save his chair, Surawardi had agreed to all of Gopal Mukherjee's conditions. However, on 21st of August 1946, once the army was deployed, the British Viceroy, Lord Archibald Wavell, dismissed Surawardi and his Muslim League government. Later, Gopal Mukherjee also refused to surrender arms to Gandhiji. When the latter came and asked Hindus to surrender their weapons. Yes. मुंह पे बोल दिया। Later, Gopal Mukherjee also refused to surrender arms to Gandhiji when the latter came and asked Hindus to surrender their weapons. Few months after the riots, Gopal Mukherjee bluntly said he will not surrender his weapons to Gandhiji, who was nowhere in sight. When Hindus were being killed and raped during the great Calcutta killings. अभी मैं व्यूअर से पूछता हूँ कि 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मास्कर हो रहा है, गांधी जी क्या वो दोनों लड़कियों के साथ में, दोनों लड़कियों के कंधे में हाथ डाल करके सो रहे थे क्या उस समय? इडियट, इसको महात्मा बोलते हैं। He oversaw the massacre of Calcutta people like anything. Had Gopal was not there, कुछ नहीं हो, कुछ मतलब पूरा बंगाल को, मतलब ये बांग्लादेश को मिला देते थे वहां पर सोहरावर्दी कलकत्ता को। अभी भी तो वही प्लान है हिंदूज फ्रॉम कलकत्ता। सर, अभी भी वही प्लान है, मैं बता रहा हूँ आपको। अंदर देयर इज एन अंडर करंट, वही प्लान है। दैट इज व्हाई क्यों ममता बनर्जी को, कम्युनिस्टों को वोट देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे बंगाली लोग हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं आजकल सर? आप कोई भी ऑफिस में जाइए, कोई बड़ा अफसर का बोर्ड देखिए, या तो बिहारी है, नहीं तो यूपीआईट है, नहीं तो पंजाबी है, या साउथ इंडियन है कोई। 31 रूल ने सब सत्यानाश शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अच्छा, हम गोपाल पाठक जी की बात कर रहे हैं।
मुझे पता है कि बिहार में भी बहुत सारे मुसलमान थे जो बांग्लादेश में चले गए थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी भी वहीं पे रह रहे हैं। आगे पढ़ो। It goes beyond saying that if Gopal Mukherjee had not spearheaded the Hindu resistance from 18th August 1946 onward against the state-sponsored Muslim mob violence, the entire area, now known as West Bengal, would have become a part of Pakistan in 1947, and Calcutta would have been a city in the newly formed Islamic majority state of Pakistan, which was the desired objective of Jinnah and the Muslim League in their Direct Action Day plan. Thank Dada for sharing this No, beautiful my pleasure, article. sir. My pleasure, sir. नहीं My नहीं, pleasure. मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे पता था सर, इसीलिए मैं तो पहले पब्लिक को अभी भी अगर आंख नहीं खुलती है तो पब्लिक बेवकूफ है, मैं ये बोल रहा था। हमारे चैनल का इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेकर के और कृष्ण पंत, चंद्र पंत और नूरुल इस्लाम ने जो हिस्ट्री लिखी है उससे अलग जो सही चीज है उसको बताना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास में कोई विवर नहीं है, कोई बात नहीं, बट यही है कि आप लोग इसको शेयर करो और बताओ पब्लिक को कि क्या हुआ था। गोपाल पंथा साहब ने कितना सैक्रिफाइस किया था वहां पर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं पड़ी उसको अरेस्ट करने की। यार ध्यान रखना। जी। दादा अगर अपना ये गांधी नहीं होता ना तो गोपाल पाठा निपटा देता एक बार सभी को उधर। मैं तो बोलता ये अपना ये इसमें भी गांधी ने खुरापाती करी है। इसमें भी गांधी ने खुरापात करी थी। तेजवीर, कलकत्ता जब गांधी गया था ना, अगर फ्री हैंड मिलता तो गांधी का कत्ल वहीं पे कर देते हैं लोग। बिल्कुल दादा। अभी जिसने रिचर्ड एटनबरा की जो पिक्चर देखी है वो कितनी बायस्ड है, देख लो गांधी के प्रति। सर गांधी को वो नहीं मारते क्योंकि गांधी इज प्रो मुस्लिम, कभी नहीं मारते। अरे क्या, किसका बात कर रहे हो यार? गोपाल पाठा। अरे वो वाला गांधी जो जिसको हम एमके गांधी कहते हैं, वो था प्रो मुस्लिम। वो तो सब जानते हैं यार, नया कोई बात बोलो तो। हाँ बोलिए, मैं आप कुछ कह रहे थे। बोल रहा हूँ कि गोपाल पाठा would have done his utmost to, I mean, take Gandhi to task had he been given a free hand. देखिए, he refused to surrender his arms bluntly. मुंह पे बोल दिया ना, I won't surrender. तो कोई कुछ नहीं कर पाया उसको। He had the gall to confront Gandhi. The army was called in, otherwise he would have done much more. तीनों आदमी पैर पकड़ लिया ना आकर, सुरावर्दी, मुजीबुर रहमान और कौन वो। अभी हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं ना, उस समय वाइसराय रूल लगा दिया था ना वहां पर। हाँ, and the army was called in, नहीं तो वो खत्म कर देता सब। मुसलमान रहता ही नहीं कलकत्ते में। दादा ये पढ़ो तो। जी। The 1947 Sylhet referendum was held in the Sylhet district of the Assam province of British India. मैं ये बता देता हूँ। I want to clarify why I am making you all to read this document and go through it, because असम को इन लोगों ने इंडिया के साथ में रखा था, तो the reason is somewhere here in this article. जी सर। The 1947 में जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम की ज्यादा थी। The 1947 Sylhet referendum was held in the Sylhet district of the Assam province of British India to decide whether the district would remain an undivided Assam and therefore within the post-independence dominion of India, or leave Assam for East Bengal and consequently join the newly created dominion of Pakistan. The referendum's turnout was in favor of joining the Pakistani Union. However, the district's Karimganj subdivision remained within the Indian state of Assam. Prior to British arrival in the region in 1765, the Sylhet Sarkar was a part of the Bengal Suba of the Mughal Empire. Initially, the Company Raj incorporated Sylhet into its Bengal presidency. However, 109 years later, on 16 February 1874, Sylhet was made a part of the non-regulation Chief Commissioner's province of Assam,
northeast frontier in order to facilitate Assam's commercial development. This transfer was implemented despite a memorandum of protests being submitted to the Viceroy, Lord Northbrook, on 10th August from the districts of Bengali majority population, which consisted of both Hindus and Muslims. These protests subsided when Northbrook visited Sylhet to reassure the people that education and justice would be administered from the city of Calcutta in Bengal, as well as when the Hindu zamindars of Sylhet realized the opportunity of employment in Assam's tea estates and a market for their produce. After the first partition of Bengal in 1905, Sylhet was briefly reincorporated with Eastern Bengal and Assam as a part of the new provinces Surma Valley and Hill Districts Division. However, this reorganization, was short-lived as Sylhet once again became separated from Bengal in 1912 when Assam province was reconstituted into a chief commissioner's province. By the 1920s, organizations such as Sylhet People's Association and Sylhet Bengal Reunion League mobilized public opinion demanding Sylhet's reincorporation into Just a minute. no problem. By the 1920s, organizations such as the Sylhet People's Association and Sylhet Bengal Reunion League mobilized public opinion demanding Sylhet's reincorporation into Bengal. However, the leaders of the Reunion League, including Muhammad Bakht Mazumdar and Syed Abdul Majid, who were also involved in Assam's tea trade, later opposed the transfer of Sylhet and Kachar to Bengal in September 1928 during the Surma Valley Muslim Conference, supported by Abdul Majid's Anjuman-e-Islamiyya and Muslim Students Association. The partition of India was to happen along religious lines in August 1946. Muslim majority areas would be combined to form the new Pakistan, while non-Muslim and Hindu majority areas would remain in India. Sylhet was a Muslim majority Bengali speaking district in Assam, which was a Hindu majority Assamese speaking province. The government of Assam believed that removing Sylhet would make the state more homogeneous and strongly unified. As a result, Assam's Chief Minister Gopinath Bordoloi stated in 1946 that his wish was to hand over Sylhet to East Bengal. The British Raj declared on 3rd July 1947 that a referendum would be held on 6th July 1947 to decide the future of Sylhet. H. C. Stock was appointed as the commissioner of the referendum. The majority of the population voted in favor of joining Pakistan. Point to be noted. हर जगह यही हाल हो रहा है. The majority of the population voted in favor of joining Pakistan. This was implemented via Article 3 of the Indian Independence Act of 18 July 1947. The Radcliffe Line, published on 17 August 1947, gave some areas of Sylhet, mainly Karimganj, to India, while the rest of Sylhet joined East Bengal, even though Karimganj had a Muslim majority population which had opted for Pakistan, unlike some other areas in Sylhet like Maulavi Bazar. The putative cause of this was the plea of a group led by Abdul Matlib Mazumdar. India received 3.5 thanas of Sylhet. Along with Karimganj. Zakirganj was also to be a part of independent India, but this was presented by a delegation led by Sheikh Mujibur Rahman. Thus, most of the Sylhet district joined East Pakistan, which later merged as the new country of Bangladesh in 1971 following the Bangladesh Liberation War. The result of the referendum was largely welcomed by Assamese Hindus. मत पढ़ो इसको पूरा छोड़ दो. हाँ, ये वोटर ऐसे कहता है. अभी
मैंने इसको इसलिए खोला था कि ये जो बेवकूफ आदमी था इसके बारे में क्या है? बेवकूफ में बदमाश आदमी था ये राइट्स तो यही करवा था ना तीनों मिलकर ही। उसी का तो पार्टी का आदमी था सुरावर्दी का ये। इसको पूछते हैं लोग। ये मेरे पिताजी बताए थे सर। करेक्ट 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 करेक्ट। 15 अगस्त 1975 को जब ये मारा गया था ना, जी जी, तो मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा आप तो बहुत खुश हो गए आप। जी, तो जी। बोले क्या हुआ? मैंने जब चिट्ठी वापस आई तो मैंने बोला मैंने मुजीबुर रहमान को मार दिया। बोले अच्छा हुआ साले को मार दिया, नहीं तो अगर ये नहीं होता था तो शायद पाकिस्तान भी नहीं बनता था, ना ईस्ट पाकिस्तान बनता था ना वेस्ट पाकिस्तान बनता था। ये सब बोलते थे। गड़बड़ तो ये ईस्ट कलकत्ते से ही शुरू हुआ, पूरा बंगाल से, बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ बिहार। साले लोग वोट दिए 90% और गए नहीं, सब यही पड़े हुए हैं। हाँ, वो तो स्ट्रेटजी से थे ना कि हमको फिर वापस आना है। महानुभाव तो नहीं गए, बताओ भैया कुछ बोलो। बड़े बड़े नहीं मैं जिंदा हूँ। तेजवीर जी क्या बत्ती दादा। बोल रहे क्या? हाँ नहीं हम आपको सुन रहे हैं, आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं हिरणमय को नहीं, बोला अभी हमने सिर्फ जो जितना पढ़ा है उसके बारे में कमेंट लेना चाहते हैं, इसलिए बाजवा साहब बताओ ना कुछ। आपके तो रिमार्क्स ही बड़े बहुत ही मतलब बहुत क्या बोलते हैं वेट वाले होते हैं, 1-1 क्विंटल के होते हैं। बोलिए। आई थिंक ही इज बिजी समवेयर। दादा जय भारती साहब आप बोलिए। मैं तो मूंगफली सर अब क्या बोल रहा है? गाली किसको दीजिएगा? बंद करो कैमरा, बंद करो। मैं तो मूंगफली खा रहा हूँ। कैमरा बंद करो। मैं बोल रहा हूँ आप किसको जिम्मेवार ठहराइएगा? जिम्मेवार कौन है सर, अब ये बताइए। आइडियोलॉजी है जिम्मेवार। अब अगर आप समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने गड़बड़ तो यहीं से ईस्ट से शुरू हुआ ना, तब तो आपको वो आप लोग दिक्कत में हो। यू नो एम दादा, ऑल सेड एंड डन, अगर पार्टीशन ना भी होता तो ये हालत हमारी पेशावर में हो सकती थी। धीरे हरासमेंट और ये सब जो है ना, आप मेजॉरिटी आपको माइनॉरिटी को रहने नहीं देती। 47 में नहीं तो उसके थोड़े बाद में निकलते। अच्छा बेबी सर, मान लीजिए हम बांग्लादेश को टेक ओवर करना चाहते हैं और इसको ऐसा करने के लिए अगर कुछ मैसेकर करने पड़े तो हमारे ऊपर कितना झमेला होगा, सैंक्शन लगेगा। मौका निकल गया हाथ से। ठीक है। वीबी सर एक चीज बताइए सर, ये 90,000 सोल्जर्स जो पाक आर्मी के हम लोग अरे भैया अपना पहले बंगाल तो बच जाए। दादा शिमला पैक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ नहीं। वो शिमला पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हिस्ट्री का। जी उसको डिस्कस करना है। जी शिमला पैक्ट और ताशकंद पैक्ट दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर। पब्लिक को मालूम है, जो बच्चे देख रहे होंगे उनको मालूम है क्या कि हम लोगों ने लाहौर पे अपना झंडा फहरा दिया था 1965 में। फोटोग्राफ्स हैं सर इंटरनेट में। पुलिस स्टेशन के सामने देखिए इंडियन आर्मी सोल्जर्स खड़े हैं और झंडा जो है ऊपर से लहरा रहा है, इंडियन फ्लैग। मैं आपको इंदिरा गांधी थी ना उस टाइम। ना वापस क्यों बुलाया फिर? तेजवीर नहीं जी, इंदिरा गांधी तो ऐसे क्रेडिट ले जाती है, पॉलिटिशियन ऐसे क्रेडिट ले जाते हैं। सैम मानेकशॉ असली हीरो है। शास्त्री जी थे उस समय 65 में। हाँ जी, लाल बहादुर 65 में शास्त्री जी थे। वापस बुलाया क्यों गया, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ये बोलूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे को शायद फांसी में लटका दे। लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर इस चक्कर में हुआ था, लाहौर को वापस नहीं देना चाह रहे थे वो। अच्छा, लाहौर भी
और सियालकोट भी, दोनों शहर इंडिया के आर्मी के कब्जे में थे। हाँ, आर्मी वाज स्ट्रांगली अपोजिंग एंड लाल बहादुर शास्त्री वाज नेवर एग्रीइंग कि ठीक है हम इनको वापस देंगे, और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री को वहां से वापस आने नहीं दिया जिंदा। ये इन लोग कश्मीर तक घुस सकते हैं और टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं, जो एलओसी बन गया है, तो हम लोग क्यों नहीं जाकर अपना ले सकते हैं? हाँ जी, मजूमदार जी, जो आपने वो फोटो देखी है ना लाहौर की, जहाँ में इंडियन सोल्जर खड़े हैं, वो पुलिस स्टेशन की, उसके पीछे एक बड़ी फनी स्टोरी है कि हाँ जी, इंडियन आर्मी ने जो आम लोग होते हैं ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है एमुनिशन को आगे ले जाने के लिए। तो एक टाटा ट्रक वाले ड्राइवर साहब थे, उनको पता नहीं था कि इंडियन आर्मी कहाँ खत्म होती है और कहाँ पाकिस्तान शुरू होता है। वो ट्रक चला के जा रहे थे, चलते गए और सीधा वो उस पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए। वो पुलिस ने भी आकर उन्होंने खड़ा कर दिया ट्रक। तो उनको पहले पता था कि हमने वहां पे पहुंचना, इंडियन आर्मी भी पीछे से आ रही थी। तो पुलिस वाले ने देखा है तो इंडिया का ट्रक आ गया, वो पुलिस वाले सब छोड़ के भाग गए। फिर उधर से जो पाकिस्तानी आर्मी ने देखा कि एक इंडियन ट्रक खड़ा है, कोई सोल्जर्स नहीं है, तो उन्होंने उसको ट्रक डिस्ट्रॉय कर दिया। और बाद में टाटा रतन टाटा ने उनको एक नया ट्रक भी दिया। रतन टाटा के पिताजी ने शायद उनको ट्रक भी दिया था। तो पंजाबी थे क्या? हाँ जी। हाँ, तो मजूमदार दादा, ये पढ़ो तो इसको पढ़ना है कि आगे चले? आप आज्ञा कीजिए सर, जैसा आप बोलेंगे। नहीं, आज्ञा नहीं, थोड़ा सा पहले पढ़ लो इसको, अगर मतलब लगता है कि आगे चलेंगे। मतलब माउंटबेटन ने इंडिया को डिवाइड कर दिया। मैं ये इसलिए पढ़वाना चाह रहा था, माउंटबेटन एडमिनिस्टर्ड द इंडिपेंडेंस ओथ टू जिन्ना। अरे on the 14th, नहीं, माउंटबेटन एडमिनिस्टर्ड द इंडिपेंडेंस ओथ टू जिन्ना। व्हाट ओथ जिन्ना वुड हैव टेकन? कुरान पे, मोहम्मद साहब के ऊपर, और क्या राजा के ऊपर दिखाने के लिए कुरान पे लिए होंगे। बाजवा साहब बताइए। राजा साहब कौन सी वोट ली होगी इसने? हाँ जी, मुझे सुना नहीं। बाजवा साहब, आप ये बताइए कि जिन्ना साहब को जब माउंटबेटन ने वोट दिलाई थी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की, तो उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के बोला होगा, या बाइबल के ऊपर हाथ रख के बोला होगा, या राजा के ऊपर हाथ रख के बोला होगा? मोस्ट लाइकली राजा। सर मैं बताऊं सर क्यों मैं बोल रहा हूँ कुरान? उसके पहले तो अचकन और वो क्या पैजामा पहन लिए थे ना दिखाने के लिए, टोपी ओपी लगा कर सूट फेंक दिए थे सर। In every likelihood, he would have kept a copy of the Quran to show that what a devout Muslim he is. Which everyone knew he that was he wasn't. administered before he left for Pakistan, huh? And that is the thing, sir. ये important इसलिए मैं पढ़ रहा था अभी. Mountbatten administered the independence oath to Jinnah on the 14th before leaving for India, where the oath was scheduled on the midnight of the 15th. On 14th August 1947, the new Dominion of Pakistan came into being, with Muhammad Ali Jinnah sworn in as its first Governor General in Karachi. The following day, 15th August 1947, India, now Dominion of India, became an independent country with official ceremonies taking place in New Delhi. Jawaharlal Nehru assuming the office of Prime Minister. Mountbatten remained in New Delhi for 10 months, serving as the first Governor General of an independent India until June 1948. Gandhi remained in Bengal to work with the new refugees from the Partition subcontinent. एक मिनट हाँ सर, मेरा माइक था खराब था, बोलिए। हिरन में, have you understood what Majumdar Dada has read just now? नहीं तो मैं सुन रहा था, बीच में रुक गया। Jinnah became Governor General of Pakistan and Lord Mountbatten remained Governor General of India. अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गया। क्या समझा? तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली क्या? नहीं, इंडिया तो डोमिनेंट बन गया, डोमिनेंट। अरे फिर से नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन साहब रोज दिला रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल पाकिस्तान का। हाँ ठीक है, दैट मीन्स लॉर्ड माउंटबेटन इज ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू पाकिस्तान, बट ही रिमेन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस,
That means India has not got independence on 15th August, which we are celebrating as Independence Day. हाँ सर, वो तो केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था. ट्रांसफर ऑफ पावर कहाँ हुआ? वो तो वही था. He says that he got, क्या लिख रहा है ये? On 15th August, the new Dominion of India became an independent country, with official ceremonies taking place in New Delhi. Jawaharlal Nehru assuming the office of Prime Minister. Mountbatten remained in New Delhi for 10 months, serving as Governor General of an independent India. Independent India governor, first Governor General कौन? Mountbatten. Mountbatten. Independent Pakistan का first Governor General कौन? मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना. तो पार्टी हमारा फिर वो किधर हुआ? Anyway, जाने हो. तो गवर्नर जनरल की पोस्ट, गवर्नर जनरल, हाँ जी, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसी को बाद में राष्ट्रपति बना दिया. हाँ जी. ओके. और ये कहा था ये मोहनदास करमचंद गांधी? हाँ, गांधी remained in Bengal to work with the new refugees. With new refugees, हाँ. जी हाँ, वो शायद दिल्ली में था. नहीं. पढ़िए. Gandhi remained in Bengal to work with the new refugees from the partitioned subcontinent. Mountbatten plan. At the press conference on 3rd of June 1947, Mountbatten announced the date of independence as 14th August 1947 and also outlined the actual division of British India between the two dominions in what became known as the Mountbatten Plan or the 3rd June Plan. The plan's main points were: Sikhs, Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partition. If a simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. Sindh and Balochistan were to make their own decision. The fate of Northwest Frontier Province and Sylhet district of Assam was to be decided by a referendum. The separate independence of Bengal was ruled out. A boundary commission to be set up in case of partition. The Indian political leaders had accepted the plan on 2nd of June. It could not deal with the question of the princely states, which were not British possessions. But on 3rd June, Mountbatten advised them against remaining independent and urged them to join one of the two new dominions. The Muslim League's demands for a separate country were thus conceded. The Muslim League's demands for a separate country were thus conceded. The Congress's position on unity was also taken into account while making Pakistan as small as possible. Mountbatten's formula was to divide India and at the same time retain maximum possible unity. Abdul Kalam Azad expressed concern over the likelihood of violent riots, to which Mountbatten replied, "At least on this question, I shall give you complete assurance. I shall see to it that there is no bloodshed, and not. I am a soldier and not a civilian. Once the partition is accepted in principle, I shall issue orders to see that there are no communal disturbances anywhere in the country. If there should be the slightest agitation, I shall adopt the sternest measures to nip the trouble in the bud." उसके बाद भी तो लोग आते जाते मारे गए. Jagmohan stated that on 3rd June 1947, the partition plan was accepted by the Congress Working Committee. Boloji states that in Punjab there were no riots, but there was communal tension, while Gandhi was reportedly isolated by Nehru and Patel and observed Maun Vrat, Day of Silence. Mountbatten visited Gandhi and said he hoped that he would not oppose the partition, to which Gandhi wrote in reply, "Have I ever opposed you?" Very important. Have I ever opposed you? मैं तो आपका servant हूँ, obedient servant हूँ, obediently yours, sir. Over my dead body गया पानी में. Faithfully yours. You are my lord. India, the border between India and Pakistan, the Radcliffe Line, was determined by a British government commissioned report
prepared under the chairmanship of a London barrister, Sir Cyril Radcliffe. Pakistan came into being with two non-contiguous areas, East Pakistan, today's Bangladesh, and West Pakistan, separated geographically by India. India was formed out of the majority Hindu regions of British India and Pakistan from the majority Muslim areas. On the 18th July 1947, the British Parliament passed the Indian Independence Act and finalized the arrangements for partition and abandoned British suzerainty over the princely states, of which there were several hundred, leaving them free to choose whether to accede to one of the new dominions or to remain independent outside both. The Government of India Act of 1935 was adapted to provide a legal framework for the new dominions. Following its creation of the new country in August 1947, Pakistan applied for membership of the United Nations and was accepted by the General Assembly on 30th September 1947. The Dominion of India continued to have the existing seat, as India had been a founding member of the United Nations since 1945. So India was founding member of United Nations. Yes. हाँ, जवाहरलाल नेहरू साहब थे ना उसके, वो प्रधानमंत्री थे ना उस समय, गुलाम इंडिया के, स्लेव इंडिया के. The Punjab, the region of the five rivers east of Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, consists of interfluvial doabs, two rivers, or tracts of land between two confluent rivers. The Sindh Sagar doab between the Indus and the Jhelum, the Jech doab between Jhelum and Chenab, the Rechna doab, Chenab and Ravi, the Bari doab, Ravi and Beas, and the Bist doab, Beas and Satluj. In early 1947, in the month पढ़ लिया था leading इसको, to the मैंने कल पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में. जी जी जी, ये इसको हाँ कवर कर गुरदासपुर एंड ऑल सब पढ़ा है कल हाँ मैंने. ये सब आ गया वो सिरिल रैटक्लिफ वाला इशू में आ गया. हाँ, ये पढ़ो, बंगाल वाला पढ़ो. The province of Bengal was divided into two separate entities of West Bengal awarded to the Dominion of India and East Bengal awarded to the Dominion of Pakistan. East Bengal was renamed East Pakistan in 1955 and later became the independent nation of Bangladesh after the Bangladesh Liberation War of 1971. The districts of Murshidabad and Malda, located on the right bank of the Ganges, was given to India despite having Muslim majorities. The Hindu majority Khulna district, located on the mouths of the Ganges and surrounded by Muslim majority districts, were given to Pakistan, as were the easternmost Chittagong hill tracts. Thousands of Hindus located in the districts of East Bengal, which were awarded to Pakistan, found themselves being attacked, and this religious persecution forced hundreds of thousands of Hindus from East Bengal to seek refuge in India. The massive influx of Hindu refugees into Calcutta affected the demographics of the city. Many Hindus left the city for East Pakistan, and the refugee families occupied some of their homes and properties. Total migration across Bengal during the partition is estimated as 3.3 million. 2.6 million Hindus moved from East Pakistan to India, and 0.7 million Muslims moved in from India to East Pakistan, now गए Bangladesh. नहीं साले, गए नहीं. मैंने गया नहीं, ऐसे ही बताया. ये भी शायद पढ़ लिया हम लोगों ने. हाँ कर लिया. दिल्ली का ये है. लाजपत नगर कल जो दिखा रहा था, पुराना किला एरिया से मैप दिखा रहा था. ये महाराजा पटियाला कौन है? वो अमरिंदर सिंह वाला जो है वही है ये? हाँ जी वही है, उसी का फैमिली है. पढ़ो तो इसको,
कुछ In इम्पोर्टेंट several cases, का नाम आ रहा है कहीं पर. ruler of princely states were involved in communal violence or did not do enough to stop in time. Some rulers were away from their states for the summer, such as those of the Sikh states. Some believe that the rulers were whisked away by communal ministers in large part to avoid responsibility for the soon-to-come ethnic cleansing. In Bhavalpur and Patiala, upon the return of their ruler to the state, there was a marked decrease in violence, and the rulers consequently stood against the cleansing. The Nawab of Bhavalpur was away in Europe and returned on 1st of October, shortening his trip. A bitter Hassan Surawardi would write to Mahatma Gandhi, "What is the use now of the Maharaja of Patiala when all the Muslims have been eliminated, standing up as the champion of peace and order?" उधर भी आग लगा The रहा है ex- ये. हाँ, यहाँ मतलब कुछ नहीं हुआ बंगाल में आग लगाने के बाद. With the exceptions of Jinn and Kapurthala, the violence was well organized in the Sikh states, with logistics provided by the Darbar in Patiala and Faridkot. The Maharajas responded to the call of Master Tara Singh to cleanse India of Muslims. The Maharaja of Patiala was offered the leadership of a future united Sikh state that would rise from the ashes of a Punjab civil war. The Maharaja of Faridkot, Harinder Singh, is reported to have listened to the stories of the massacres with great interest, going so far as to ask for juicy details of the carnage. The Maharaja of Bharatpur state personally witnessed the cleansing of Muslim neos at Khumbar and Deeg. When reproached by Muslims for his actions, Brijendra Singh retorted by saying, "Why come to me? Go to Jinnah." सही बहुत सही मारा बोला था है. वहां पर, भरतपुर में बहुत मारे गए थे लोग. हाँ, बहुत सही बोला है एकदम. In Alwar and Bhavalpur, communal sentiments extended to higher echelons of government, and the prime ministers of these states were said to have been involved in planning and directly overseeing the cleansing. In Bikaner, by contrast, the organization occurred at much lower levels. In Alwar and पड़ा Bharatpur, पड़ा 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 हम लोगों ने. rehabilitation of women. Both sides promised to each other that they would try to restore women abducted and raped during the riots. The Indian government claimed that 33,000 Hindu and Sikh women were abducted, and the Pakistani government claimed that 50,000 women, Muslim women, were abducted during riots. ये सब फालतू बात. By 1949, no Hindu would touch a Muslim girl. By 1949, there were legal claims that 12,000 women had been recovered in India and 6,000 in Pakistan. By 1954, there were 20,728 Muslim women recovered from India and 9,032 Hindu and Sikh women recovered from Pakistan. Most of the Hindu and Sikh women refused to go back to India, fearing that their families would never accept them, a fear mirrored by Muslim women too. सर इको क्यों आ रहा है? नंबर कोई यूट्यूब खोल के रखा है क्या? कोई सुन रहा होगा पीछे से, कुछ और सुन रहे होंगे. खत्म, हमारा प्रेजेंटेशन खत्म. नाउ डिस्कशन इज बीइंग ओपनड. खत्म. नाउ पार्टीशन पार्ट इज ओवर. चलो, जी सर. किसी को जोड़ना है तो बोल सकते हैं. तेजवीर, हिरणमय, दादा, जय भारती साहब, बाजवा साहब निकल लिए हैं. इधर कोई है क्या? चलो, कितना देर हो गया? हाँ, 2 मिनट. भागवत साहब का कुछ काम है, मतलब कोई आया है उनके घर में शायद, रिसीव हाँ करने हाँ के लिए ठीक है, गए. वो आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम. क्या हुआ तुम्हारे रावण सर का? क्या हुआ? रावण सर नहीं आ रहे हैं? सिंह साहब क्या बोल रहे हैं? सिंह साहब, हाउ कुड आई ज्वाइन? इनको लिंक हाँ, रावण भेजना साहब बोल रहे चाहिए हैं तुम्हारे पास तो. पासवर्ड मांग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं. एनीवे, ठीक है. तो बोलो भाई. दादा, ये तो अब
अब 2 यंग लड़के हैं जहाँ पे मैं तो ये पार्टीशन कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक मतलब चांस है कि हम बांग्लादेश को ले सकते हैं विदाउट देयर पॉपुलेशन, हमें ओनली बाय ओनली विद ओनली हिंदू पॉपुलेशन। अरे ऐसा थोड़ी होता है। लेने की मत सोचो यार, अपने भविष्य की सोचो, अपने भविष्य की सोचो। जितने फेनेटिक है ना वहां पर, वो सारे के सारे तुम्हारे पीछे से घुसड़ के आगे से निकाल देंगे फिर वो लोग, जितने अगर मिल गए तो। इंटरनेशनली हमारे ऊपर क्या लगेगा, शायद सैंक्शन लगा दे। अरे कुछ नहीं होगा यार, उनको जहाँ पर रहने दें, उनको खिलाने पिलाने का ठेका क्यों लेना है दिल्ली वालों को? हम लोग अपने टैक्स के पैसा से उनको क्यों खिलाए पिलाएं? 12-12, 15-15 बच्चे पैदा कर देते हैं। किस गवर्नमेंट की हिम्मत है कि उनको नसबंदी कर दे? उनकी 4-4 बीवियां रखते हैं वो, जहाँ पे उनको रहने दो आराम से, हम लोग खुश हैं। उन्होंने पार्टीशन मांगा था, भूखे मरे प्यासे मरे, हमें क्या लेना देना उनसे? We were discussing that this should not happen again in India. Like अगर कुछ होता है तो we should be prepared कि भाई हिस्ट्री से हमको कुछ सीखना चाहिए। prepared like गोपाल पठा। हाँ, जैसे ये ओवैसी जैसे गधे हैं ना, और जितने भी मुल्ला जो टीवी चैनल पे टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बुला लेते हैं और दुनिया भर की बकवास करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, तो उनसे हमारे को थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, बस ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे ओवैसी को संभालने के लिए वहाँ साउथ पे हैदराबाद पे एक है ना हमारा राजा सिंह, सॉरी उनका नाम क्या है, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। अरे उसको भी बंद कर देते हैं यार। नहीं, साउथ में एक अच्छा लीडर है। हाँ, हैदराबाद वाले। हाँ, उनका नाम शायद सादा राजा सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका। वो एक प्रॉपर उनको सपोर्ट करना चाहिए किसी भी तरह से। वो योगी आदित्यनाथ को मतलब एडमायर करते हैं, सॉरी वो मुझसे बड़े हैं काफी। चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या करने का है। वी शुड गो फॉर 1947 कश्मीर का प्रॉब्लम, या कहाँ से लेके चले? सर बप्पा रावल के बारे में लीजिएगा। कश्मीर का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है सर। बप्पा रावल के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, बप्पा रावल कहाँ जा रहा है यार? उधर नहीं जाएंगे पीछे कहाँ है हम उधर कश्मीर का जो मिडिवल में नहीं जाएंगे, मिडिवल में नहीं जाएंगे। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द मेन प्रॉब्लम, हाउ इट स्टार्टेड इन कश्मीर। देखो ईरान में एक बात सुनो, हमारी जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं 47 पहले जिन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, उनके बारे में बात करके फील गुड से हमें कुछ मिलना नहीं है, वो हो गया। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ गया। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करके, और ठीक है उन्होंने जो किया उनको नहीं कह रहे। ये जो फील गुड मोमेंट है ना, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है? हिस्टोरिकल थोड़ा इसलिए देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हुआ है और ये आगे होगा। पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबिलिटी है, ये आगे होगा, ये होगा, देख लेना, बिल्कुल होगा। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं कि फील गुड मोमेंट जो है ना, उससे वी नीड टू गेट आउट, कि भाई उन बप्पा रावल जी ने ये किया और उन्होंने हमारे किया, वो खत्म हो गया टाइम। we really need to have a very laser focus। ये हुआ है, ये हो रहा है और ये होगा, हो नहीं सकता, होगा। ये ट्रेन है, आ रही है, क्या करना है बोलो? तेजवीर, आप हो पंजाब में, पंजाब की हालत देखो, आप हो बंगाल में, बंगाल हालत की देखो, बोलो क्या करना है? मजुमदार, हम लोगों ने कश्मीर प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है शायद। कश्मीर ओरिजिन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, मस्कर एंड एक्सोडस ऑफ कश्मीर पंडित, ये तो किया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा सर। लेकिन दैट वाज इन 89, इन द कंटेस्ट ऑफ 89 ऐसा करके बोला है। तो शुरू से मतलब when the Pakistanis Qabalis attacked, उसके बाद जो we can cover that portion maybe later। पंजाब में ये करना है कि पंजाब में मैं तो हूँ अपने घर का बड़ा बेटा,
तो मुझे तो बनना मैं तो बन चुका हूँ सहजधारी सिख। अरे वो था देवाती साहब ज्यादा बोलेंगे इस बारे में, मैं नहीं बोलता। चलो बोल देवाती साहब, बताओ उसको। क्या क्या पहले होता था, अब नहीं होता कोई। नहीं, बन जाओ सिख। सिख बनने में कोई नहीं, कोई कम से प्रॉब्लम कम नहीं। तुम्हारे हाथ में एक तलवार, तुम्हें बाय लॉ एक तलवार हाथ में रख सकता है। सिक्स आर अलाउड। एक राजीव सिंह है सिख, उन्होंने एक सोल्यूशन दिया था। सर बैक उन्होंने कहा स्टेज में था बात करूंगा सर इस विषय में, बैक स्टेज नहीं में नहीं बात नहीं करूंगा सर। नहीं नहीं, ये तो ओपन उन्होंने दादा, ये तो यूट्यूब पे वीडियो है, सुना। उन्होंने बोला अपनी घर की हिंदू महिलाओं को सिख बना दो। आधी तो सिख नहीं वैसे ही हैं, न शराब पीती हैं, न बाल काटती हैं, जो है। कम से कम अगर अगर मेरे घर की, अगर जैसे मैं इंडिया में हूँ, शादी है, अगर मेरी बीवी को तुम अपने आप को सिख डिक्लेयर कर दो, कम से कम घर में कृपाण तो होगी बिल्कुल बाय लॉ। अगर ये कहता है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। थैंक यू सर। बन जाओ सिख। लेकिन जय दादा, तलवार हाँ के जी, लिए तो चलिए। किसी भी लाइसेंस की जरूरत है नहीं अपने को। नहीं, हम तलवार हिंदुओं रखने को के लिए कहाँ, लाइसेंस की जरूरत है कहाँ? नहीं हिंदुओं को अलाउड नहीं है ना, हमें कहाँ शस्त्र रखने की अलाउड है। 1991 सर, में दीदी सर, बोलिएगा। I can only 1991 में जो carry a पॉपुलेशन pocket थी, अब इनके घर में knife, तो ये I तो believe. होता नहीं कि 4-4 बीबियां रखते हैं, 16-16 बच्चे होते हैं। तो होना ही है ना। जब यूसीसी की डिमांड करते हैं तो तकलीफ हो जाती है इनको कि नहीं 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 ये नहीं करना। संजय गांधी ने एक बार हिम्मत की थी, सब सालों को काट के रख दो, तब तो तकलीफ हो गई थी। Mascot en route. It is said संजय that गांधी ने शायद Ramnagar reserve in Jammu was littered with dead bodies of Gujar men, women and children. In the Muslim locality of Jammu city, Talab, Khatikana and Mohalla Ustad, Muslims were surrounded and were denied water supply and food. The Muslim in Talab Khatikan area had joined to defend this and that. मतलब हमारे जो, ये मैंने वीडियो इसलिए दिखाया था कि हम लोगों ने कश्मीर का डिस्कस किया हुआ है। जी जी, तो फिर वी वोंट रिपीट दिस। तो आई थिंक वी शुड स्ट्रेट वे गो टू 65 का, जिसमें वो ताशका दोस्कंद हुआ था ना, 65 की लड़ाई के बाद जाएंगे। दैट इज रेलेवेंट सर, एग्जैक्टली। तो भाई मतलब वहां पर आएगा कि हाउ अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देन हाउ ही वाज क्या बोलते हैं, डिसीव्ड बाय द एडवाइजर, आर्मी एडवाइजर टू अटैक इंडिया so that Kashmir may be taken. वो एक प्लान था उनका। they attacked deliberately Punjab side. They deliberately attacked Punjab side कि जैसे कि सारी की सारी फोर्सेस पंजाब को डिफेंड करने के लिए, राजस्थान को डिफेंड करने के लिए आ जाए, कश्मीर को छोड़ दें फ्रंटियर को, और हम लोग कश्मीर घुस के टूर ले लेंगे। That was a plan in 65. यस सर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाँ, तो मुझे आई थिंक जय भारती साहब और बाकी सब एग्री करेंगे। तो लेट अस डिस्कस दैट हाउ अयूब खान टुक ओवर by overthrowing the civilian government in Pakistan and then how he planned 65 war and then ताशकंद पैक्ट उसमें अपने आप आ जाएगा। तो ज्यादा अगर 65 पे बात कर रही है तो थोड़ा 3 साल पहले पीछे भी उसकी भी बात कर लो। Why Air Force was not used? अगर एयर फोर्स यूज कर लेते 62 में तो उस पे भी जरा कर दो बात 1 घंटे के लिए। अरे मेरे भाई साहब एयर फोर्स में थे, वो तो तेजपुर में थे ना, वो तेजपुर के एयर फोर्स तो चिल्लाते रहे ऑफिसर की भाई हमारे को दो ना परमिशन, जाएंगे तो क्या जाएंगे, इनको दिया ही नहीं उनको परमिशन। ये डेलिब्रेट था करने का, क्यों नहीं दी? आपके पास एयर फोर्स है। So should we go into, दादा एक बताओ, should we go into annexation of Tibet by China and then China war? हाँ दादा, मुझे ज्यादा पता है नहीं इसके बारे में, भी करते हैं बात थोड़ा सा, अगर करना चाहिए। सर पता नहीं है, करेक्ट सर, दैट्स व्हाई वी शुड गो इनटू दिस, ताकि थोड़ा नहीं उसमें फिर हो जाएगा ना माइग्रेशन ऑफ दलाई लामा, कुछ मिस किया है वहां से जरूरी हो जाता है ना। नहीं बिल्कुल सर, इसको करते हैं सर। जवाहरलाल नेहरू की कितनी गलतियां हैं वो सब आ जाएंगी। पंचशील का जो उन्होंने एग्रीमेंट जी किया हुआ जी था, जी, हिंदू चीनी भाई जो कर रहे थे वो। तो
तो मतलब 58 के आसपास में जब ये क्या बोलते हैं उसको, माओ से तुंग ने वहां पर चाइना मतलब तिब्बत के ऊपर जब फौजें भेजी थी विद जवाहरलाल नेहरू को पटा करके। और दलाई लामा क्या 50 उसी वक्त या 59 में ही लेफ्ट? 59 में आया ना साहब वो। 58 में जब उन लोगों ने वहां पे इनकर्जन शुरू किया, देन ही फ्लेड फ्रॉम तिब्बत। हाँ, और उसी के चक्कर में कि भाई ठीक है, इसको तुम वहां पे शरण क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, स्टार्टेड क्लेमिंग ओवर ऑल ओवर इंडिया की हमारी टेरिटरी, और यहाँ पे घुस गया। बाकी तो अगर तिब्बत को हम लोग फोर्टिफाई कर देते अपने फोर्सेस से, तो शायद वो तो हमेशा हमारे बफर स्टेट रहता था तिब्बत। चाइना तो बहुत दूर था उधर पड़ा हुआ। जी हाँ। एक बात कितनी गड़बड़ की है सब, बाप रे। दादा किताब पढ़ रहा था, उसमें 65 वॉर में जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया ये उसमें, तो इंडिया ने 47 के बाद कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो जनरल से दे वर टॉकिंग टू शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा कि क्या सोल्यूशन है। उसने कहा हमें भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, दैट्स इट। शास्त्री ने पूछा ना क्या क्रॉस, दैट इज द फर्स्ट टाइम कि 65 इंडियन आर्मी क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर के वो लाहौर में थे। अच्छा एक चीज और, वो जब जहां पर कह रहे हैं ना जहां तक पहुंचे थे, एक न्यूज और भी है कि इंडियन आर्मी आल्सो गॉट कंफ्यूज कि अभी तक हमको रेजिस्टेंस मिली क्यों नहीं, इज इट अ ट्रैप। वो इसलिए एक जगह आके रुक गए कि कोई था ही नहीं, क्योंकि सारी फोर्सेस डाइवर्ट थी, इंटेलिजेंस उस वक्त थी नहीं, ये इसलिए रुक गए। अगर क्लियरली पता होगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस सारी वहां पे एंगेज है, दे वुड हैव मार्च्ड ऑन। मैंने जो व्हाट आई हैव रेड। तो दादा करिए इस पे 62 पे करते हैं बात थोड़ी। तो हम लोग 58 से मतलब 58 मैं थोड़ा सा इसका बारे में बता देता हूँ कि अगर हम लोग तिब्बत को वो करते हैं, तो अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो शायद अपना 1962 वॉर आ जाएगा। ठीक है, वो तो आना ही है। ये बड़ा ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों को, मुझे भी थोड़े साल तक पहले तक नहीं पता था कि वी हैड एयर फोर्स और वी डिडंट यूज इट। कॉल साहब थे उस टाइम पे कोई सीनियर आरपी? अरे छोड़ो साहब, नंबर 1 हरामी था वो। चलो नाम तो आना चाहिए ना। देखो इनके नाम सुनकर के गुस्सा आता है अपने को। चमचा कहीं का, नेहरू का चमचा था वो, नेहरू का। जी 1967 में चाइना भी एक बार मतलब यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा आ रहा था भारत पे। मारा था 67 में। Tibet came under the control of People Republic of China after the government of Tibet signed the 7th point agreement with 14th Dalai Lama, ratified and so, but later repudiated on the ground that he rendered his approval for the agreement while under duress. This occurred after attempt by the Tibetan government to gain control. मेरी लाइट पड़ती है इसके ऊपर ना मेरे दादा। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। दादा अगली स्ट्रीम पे ले रखते हो ना इसको। हाँ, इसको अगली स्ट्रीम पे रहने दो ना अभी। नहीं मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि 1959 the government of India and the Tibet social structure remained in place in the Tibetan polity under the authority of China until 1959 Tibet uprising when Dalai Lama fled. ये जय भारती साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि 1959 में वो भागे थे। पहले उनसे साथ में बातें हो रही थी, बट जब उन लोगों ने इन्वेड कर दिया तो उनको भागना पड़ा। हाँ, तो मेरे को भी यही पता था कि 59 में भागे, लेकिन ये नहीं पता था 58 में इन्वेजन हुई है, डिस्कशन चल रही थी। गुड, ओके। तो we will start from the annexation of Tibet and then which led to the ultimate China-India war, Sino-India war. Right. Correct. है ना? Till 1967. आ जाएंगे, वहां भी आ जाएंगे, एक एक कदम करके चलते हैं। ठीक है दादा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है, 2.5 घंटे हो रहे हैं नाउ। एक 2 मिनट कमेंट दो, 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। तेजवीर स्टार्ट।
पार्टीशन ऑफ इंडिया इज ओवर, इसके बारे में बात करो, बस खत्म करते हैं इसको। हो गया हिरन में? नहीं उसको अबे तेज में सो गए क्या? आने दे हिरन में। हैव यू गेन समथिंग आउट ऑफ द थ्री पार्ट? हाँ, गोपाल पाठा, गोपाल मुखोपाध्याय, उसके मैं बाद बोल रहा हूँ 3 पार्ट में तुम्हारे वो कितना गेन हुआ ये बताओ भाई, हाउ मच यू गेन्ड? कुछ नॉलेज में वृद्धि हुई? हाँ जी वही वृद्धि भी हुई, परंतु हम वो असम वाला पार्ट जरा फिर से देखना पड़ेगा, तो देख लेना दोबारा उसको, थोड़ा कंफ्यूजन। वीडियो दोबारा देखना उसको पूरा। बाकी तो मजूमदार असम को में मैं कुछ क्या बोलूं, मजूमदार शुड बी वोटिंग अप्रिशिएटेड इशू फॉर हुआ ऑल है। हिज एफर्ट्स। नो सर, इट्स माय प्लेजर सर, आई एम ड्यूटी बाउंड जयभारती सर। साहब आप बोलिए जयभारती साहब। हाँ तो चाचा दादा जी के आज जो पता चला कि अगर बंगाल में ना होता तो जो आप कह रहे हो दैट नहीं लेड टू द होता था, नहीं होता। नहीं होता था। ये मेन नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का यही है Yes, सर। yes, हाँ, yes. दिस इज अ टेक इम्पोर्टेंट आउट, पॉइंट दिस इज यही अ है। टेक आउट। हाँ, कल मैं जानबूझ के सब जेनिस कुछ छुपा के रखा था, मैंने कहा बंगाल के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, सोहरावर्दी के बारे में और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जब मालूम पड़ेगा तो पब्लिक की आंखें खुलेगी क्या हो रहा है। अरे बहुत लोगों को सर मालूम मैं नहीं है एक सर। एक एडिशन कर दूं, एक बात ऐड कर दूं, वो असम में असम का जो असम बोलने वाला जो मुसलमान है ना, वो लोग बंगला बोलने वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो लोग उनको अलग कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं करते। अरे उनको पसंद करें ना करें, हमारे पे फूल बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बस उस पे बात करो। वो किसी को वो करे नहीं वो हिरन भारत में को उसकी जो हिस्ट्री अलग है। असम सुन हिरन में एक बात सुन ले। 1939 में जब मुस्लिम लीग ने गड़बड़ किया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब रिजाइन कर दिया था, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ये मत करवाओ, इससे बरदुलई को बोलो इस्तीफा ना दे। फिर भी गांधी ने और नेहरू ने फोर्स किया और वो इस्तीफा दिया, और उसके बाद में जब वहां पर बरदुलई नहीं रहे तो सारे के सारे जितने भी ये ईस्ट बंगाल के मुसलमान है वो असम में घुस गए और जाके वहां पे रहे। जी हाँ सर। एंड द डेमोग्राफी चेंज्ड। तो असम की डेमोग्राफी चेंज करने में कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों ने डिलिबरेटली वहां पर अलाउ किया था जिससे कि वहां की पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाए। अल्टीमेटली जो उनका प्लान था कि जब पार्टीशन होगा तो पूरे असम को ले लेंगे। परंतु सर असम में मेरे कुछ जो मुसलमान है, जो आसामी बोलने वाला मुसलमान, वो लोग कहते हैं कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को वोट देते हैं। झूठ बोलते हैं, बोलने से थोड़ी होता है। झूठ बोलते हैं। दे विल नेवर सपोर्ट बीजेपी बिकॉज उनका वो जो सरिया है वो अलाउ नहीं करता है। अच्छा, any party whose and they feel are in the demolition of Babri Masjid, how can they support यार? मतलब नहीं उठता। कहाँ सो रहे हो तुम? अरे हिरन में इतने महीनों से एक्स मुस्लिम चैनल पे हो, तुमने उनका वो नहीं सुना अल तकैया कि जहाँ जरूरत पड़े वहां झूठ बोलो। हाँ बस बात खत्म हो गई। धोखे से मार दो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, कोई भी मार दो अपने फायदे के लिए। जी हाँ जी, ये भी है। अलतकैया का हिंदी में क्या होता है? धोखा होता है ना। जी जी, जी। दिल में एक चीज है, जबान में एक चीज है, झूठ बोलो बस। क्या बस हिरन मन को समझाना जरूरी है। ये कभी कभी नहीं अलतकैया का मतलब समझता हूँ। मैथमेटिक्स करता रहता है, उस चक्कर में समझ नहीं पाता ना, ये सोशियोलॉजी और बाकी टर्म नहीं समझ पाता इसको। नहीं अलतकैया का मतलब समझता हूँ मैं। Anyway, now we are close. तेजवीर कहाँ गए यार? सो गए क्या तुम? तेजवीर चलो ठीक है, बंद करते हैं। अभी कौन जुड़ा है? बंद करते दादा। एक मिनट, कोई somebody is there। देख लीजिए सब। ये लो, अब बताओ क्या करूं इसको मैं? कौन है जी? प्रदीप इंट्रू खींच जाएगा दादा। सब बात डिस्कशन होगी, अब क्या करना है? अब सारी डिस्कशन हो गई। चलो में बात कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात, क्या पता, शुभ रात्रि, नमस्कार, वंदे मातरम जी। अभी कब करेंगे? कल कब करना है स्ट्रीम को ये बता दो।
आप बताइए सर, मंगलवार आपके ऊपर है। 9 या फिर 9:30 आपकी चॉइस। मंगलवार मंगलवार ठीक है सब। लेट्स टेक अ अच्छा ब्रेक। कल नहीं होगी? ओके मंगलवार ठीक है। नहीं, मेरी तैयारी- सोमवार को कुछ कॉल्स होती हैं, मैं फिर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मेरी मंडे मेरा बिजी रहता है। हाँ तो ठीक है मंगलवार, ठीक है ठीक है। इफ इट्स ठीक है, ओके। थैंक यू बाय। Yes, okay, ओके sir. नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, आप दादा